Padme Hum Mani 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 Padme Hum को धर्मा हॉल में प्रवचन हेतु पधारने का सदर आमंत्रित करता हूँ और स्वागत करता हूँ और आप सभी को इस प्रवचन में शरीक होने का बहुत बहुत शुभकामनाएं और आचार्य महोदय जी से भी निवेदन करता हूँ कि वो अपने मधुर वचनों से हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। सब लोग अपने हृदय में संघ चुमदेन देश न्यामे शकी केल्बो यांगलोग्रो के संघ चुमदेन दे के प्रति श्रद्धा सुमन रूपी अपने चित्त को स्वच्छ रख करके सहज भाव में रख करके क्याप्टो कीजिए। क्याप्टो करते समय जब तत्पा लग जाएगा ना, क्याप्टो करते समय जब तत्पा तम से होगा, चित्त शुद्ध होगा, तो फिर वहाँ से आगे जो धर्म का प्रवचन है उसमें फिर झिलाप आ जाता है, मन में शुद्धिकरण आ जाती है, मन पवित्र हो जाता है। चलो क्याप्टो करते हैं। संगे जगा चोना झांझो रागोदानिका सोचे ताजे जिनका जिगे ज़नांजी रोहांजी संगे रोहांशो संगे जगा जोगी जाना झांझो रागोदानिका सोचे ताजे जिनका जिगे ज़नांजी रोहांजी संगे रोहांशो संगे जगा जोगी जाना झांझो रागोदानिका सोचे ताजे जिनका जिगे ज़नांजी रोहांजी संगे रोहांशो 심진 탐지 대화 대비 교단 대마라 저지 심진 탐지 동안 동아지 교단 다라 저지 심진 탐지 동안 대화 동바 담미가와라 저지 심진 탐지 내리자 달리야 다녀 증거라 내가라 저지 심진 탐지 대화 담미 교단 심진 탐지 동안 동아지 교단 다라 심진 동안 내가
심전 동전 내린 차단 예단 달외 동년 제보 예보라 주르지 심전 동전 대화단 대외 교단 대보라 주지 심전 동전 동안 동안제 조단 달와 주지 심전 동전 동안 예배 대화 단과 이달와라 주지 심전 동전 내린 차단 예단 달외 중보로 내가 주르지 덕게 두제 샤게 소도 전제도 두제 보안장바 세계롱고 다구로제 베고 샤제자게 찬자로 강계 동부로 전주 두개네 소남미시 소네 소세 든드레 대바 저제 도와이 건드로 첼라다게 도브람 라남 동세 둘게 두제네 라레 밤네 난체 다시 일라세네 라모 전주마 lumso 조브라 첼라 찬자 타와 주조 서베 서보데 다시 lumbe 산도 탐데 산단 자진게도 전조게 전조리소 년세 산산 전노 도데미 생게데 안가마가 다루 제살 제워 제바 전남 서제네 단다메 브라젤라 찬산 지대 제단 동그라 자와단 카나마도 번제 수모이 고단 도세 달라 개바이 자세 조라 텔라 찬산 거르베 자와 이고 네세네 쳔네 손데 가 초대 남다 중도 니레네 랍도 조라 텔라 찬산 좀베 상조 조브라 공네네 네레자네 잠도 로도 가와 자제 손데 다르제네 섬데 조네 젤라 찬사 토마메네 베바 도요시 망가다이 정조 신종 천조 미용 무브라 상제네 상조 조브라 젤라 찬사 투제 돌라 뉴도 지네니 와라나세 라조 년조 추제 걸로 걸네 두자나 대바 숨라 고제 선사 현재 걸와 만브라 자제 무대 동바 두단레지 호르모 제베 요도 두나도 투바 일레 잘라 장사 세바 숨나 베메 연den제 년도 여브라 천도 전보 라메 도와 군제 랍초바 템바 제브라 젤라 전나 질라 군제 삼초 동계 사지 장마 시메 도제 타고 부셰네 냐냐 다브라 젤라 찬사 난다 제보 니바 메제네 모 센제 선은 사제 티네 두네 인세 먼저네 고돈 차게 젤라 찬사로 공제 강제 소워 제단제 사제 빌라 공바 동부로 나니 지대 대나 적제 손 대대 개바 칠라 찬사 당고 가대 나의 일례 전절배 가도 용예 lum수 윤배내 자도 도바 정대 나의 나라 찬사 제 강도 마마 제제 저 샤제 정도 셔네 건데 세제에서 산성 감도 제 세손 총매 골라 찬사 동체 거제 정의 존대네 초대 남다 중도 부타 내는 자네 단도로 가와지 절배 감도 랑젠 영바도 영바 첸도 제오 장세 망가다로 두바 문상에 제발이 제발라 천사 와라나시 첫째 골로고 제대 절도 절도 첨보 성초 중도 공과 내년대 통미 남가자라 천사 대그라 견대 다고 정된제 제배 초라도 선
Lowa kunje chopa Tishi nige tenda sumwa Risho Teshi shiva jigo jingan Kordan kutse zingan jingan Jeje tenja sambo jingan Kendar kuna taso jurwa Risho Menjiji menje kodando Disum sanje kunje mwane Ramsin chugu moksu tunsun Sawe lome shala bijanza Yende sanje kunda nyamnaya Katin sanje kunne lo bije Sawe lome shala sovande Neluk jula tobra jinje lo Sanje kundo sawe lama la Kusumgawa chenpe sovande Dome nelu rama shibad Sedan droba nyambara jinje lo Nyamkata nyambe simjin tamje kamsung kawa Dumaji jamsole dalde namba tamji chimba Zobe sanje chigopan la gobra ja de chiti dambe chi kisan ko zunji tane tenla bebra jao nyambayi kunlong chanju chudu semke pa hundu chine dambe chi sembra shu tela yang gang sembe shune daja ki tomba yang dabra zobe sanje chomne de dini ki zeba chini dini shibe ka bimbe loma che namji yang dabra zobe sanje chi zeba chine gang zeyo ka dini deba danangi tone sem chechik tu shate nawa hila te jing sembra shu जैसा कि मैंने आपको पहले से कहा था कि आगामी आने वाले 23 तारीख से मैंने आपको जगपचनी के बारे में बोलूँगा कि मैंने प्रतिज्ञा किया था लेकिन 23 तारीख के दौरान मुझे पता नहीं था कि पहले डिगुंग मॉनेस्ट्री में वहाँ पर संजय होपा में का न्यम्बा साक्षी कर रहे हैं संजय होपा में जी का पूजा कर रहे हैं और मानवीय ओंटो रुम्बची जी वहाँ लास्ट दिन में वांग देने जा रहे हैं वो के बाद में पता लगा तो इसलिए मैंने डेट को थोड़ा परिवर्तन कर दिया फिर दोबारा हम लोग 25 तारीख को आज हम लोग मिले हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता हर कहीं धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है साधना चल रहा है गमलेन चल रहा है नामदंशी कर रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कि जब तक सेम में तत्पा तामसिक जब तक सेम जो है मन जो है बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ और पवित्र ना हो फिर जो भी न्यमलेन करे चाहे मुंह से मंत्र का जप करे मौलम करे सोलतप करे गोवा करे कोरा लगाए छप छप में जो भी लगाए अगर मन में पवित्रता नहीं आती है शुद्धता नहीं आती है सेम मतकबा है तकबा नहीं है चंगमा नहीं है तो उस छस में कोई अर्थ ही नहीं निकलता है बाहर से छस जैसा लगता है लेकिन हम खुद ही जानते हैं व्यक्तिगत रूप से हर एक आदमी अपने अपने मन को जांच करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कितना साफ हूँ और मैं कितना गंदा हूँ तो छस बताता है कि आप गंदे हो तो उसको साफ करो उसको साफ सुथरा बनाओ चरित्र गंदा हो तो उसको साफ सुथरा रखो मन को साफ रखो चंगमा रखो तत्पा तमसिक रखो फिर उसके ऊपर सब काम सिद्ध हो जाता है छक छम्मे कोरा जो भी है सोलते मुआ मोलम जप करना ये सब तब जाके छस बन जाता है मैंने कई बार बताया आप लोग को जब तक रंगी सेमनी योंगसु दुल इसका समझ नहीं आया ना तब तक छस नहीं होता है संघर्ष देश का सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि जब तक मन पवित्र ना हो मन शुद्ध ना हो मन में तत्पा तामसिक निंजे जंपा करुणा मैत्री दया की भावना ना हो तो फिर धर्म नहीं बन जाता है बुद्ध के प्रति क्या कहते हैं श्रद्धा आस्था तत्पा जो भी टुथप यमलेम्पा जो भी है सबके प्रति श्रद्धा आस्था तत्पा होना चाहिए तमसिक होना चाहिए और जो बेचारा गरीब हैं दुखी लोग हैं संसार के सभी प्राणी दुखी हैं उन दुखियों के प्रति जब तक प्रेम भाव नहीं हो दया की भावना नहीं हो करुणा की भावना नहीं हो निंजे का भावना नहीं हो जंबा का भावना नहीं हो तो वो भावना जब तक हमारे मन में ना आए तब तक छस करने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता है तो छस जो है नांगबा बोल के हमारे सेम से लेना देना है सेम साफ है माने ना भी रटो तो सेम साफ सुथरा हो तो बहुत ज़्यादा पुण्य होता है माने रटो गाली गलौज करो मन में पूरा दूषित राग द्वेष अज्ञान सब भरे रहो तो वो तो कूड़े के दान में एक छोटा सा क्या कहते हैं सोने का कचरा जैसा दिखा पूरा तो कूड़ा बढ़ाया हुआ है सोने का छोटा सा कचरा दिखाई नहीं देगा वो पूरा तो गार्बेज में कूड़ा करकट बना हुआ है ना मन को कूड़ा करकट नहीं बनना है हमारा मन जो है ना वो कूड़ादान नहीं है वो ज्ञान का एक ऐसा स्थान है जिसमें आप पूरा ज्ञान भर सकते हो हर एक व्यक्ति बुद्ध बन सकता है जमचुप सिंबा बन सकता है नमलेम का बन सकता है मन को कूड़ादान बनाने की कोशिश मत करना
कूड़ा का मतलब वही जिम्बा छकवा नागल है ना जी, ईर्ष्या द्वेष अज्ञान राग मैं मेरा, ये जो संसारिक प्रपंच है ना, उस प्रपंच से दूर हटते हुए अपने मन की स्वच्छता की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलो मैं आगे तत्पा चुनी का मतलब क्या है, बुद्ध की 12 लीलाएं, भगवान बुद्ध कहाँ जन्मे थे, कौन थे, उन्होंने कैसा धर्म का अनुसंधान किया, धर्म को कैसा जाना, कैसा नमलन किया, बाद में वो कैसे प्रसिद्ध हो गए और किस तरह से संगेश का तन पर जम्बुलिंग में दर्शी किया, किस तरह से प्रचार प्रसार, वो सब इसके अंदर आएगा। मैं उसके लिए एक वो चाहिए होता है, एक साधन चाहिए होता है, केंद्र बिंदु किस तरह से मैं आप लोग को बताऊं। यही जो थपगे थुपजे शचे अभी मैंने पढ़ा ना, हम लोग सब लामा जी लोग पढ़े, जुमा आप लोग जिसको आता है पढ़े, उसी का व्याख्या में सब संगेश चुनने का नंतर आ जाता है, समझ गया ना। इसको मैं खोलने जा रहा हूँ। ये तो ये कितना 20-25 श्लोक का होगा, ये 10 दिन में चला रहा हूँ इसको खोल करके। इसके अंदर पता लग जाएगा संगेश क्या थे, समझ गया। तो वो बताने जा रहा हूँ, आप लोग पूरा मन में श्रद्धा आस्था और भावना लिए संगेश चुमनिंदेश का नमथर का श्रवण कीजिए। बुद्ध की जो वाणी है, उनका चरित्र है, उसको अपने अंदर लाने का काम कीजिए, समझ गया ना। वही अमृत वाणी का पान उसे ही कहा जाता है। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरित्र के ऊपर, लीला के ऊपर, धप्पा के ऊपर कई क्या कहते हैं दुक्थप आचार्य लोगों ने कई उनका वो जीवनी के बारे में लिखा है। उसमें से भी जो हम लोग पाठ करते हैं, थपगे थुपजे शचे रिक्सो ठूंग और नीचे ढंग से कम नहीं तो चेतन से, ये जो थपगे थुपजे शचे रिक्सो ठूंग है ना, ये थपगे थुपजे शचे रिक्सो ठूंग शेंजी मिथुत दुजी पुंजम बा सरजी लुम्बो ताब्रो जी बेकु शचे जबो छोला छाम सालो कोई शब्द अच्छा सालो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पहले का एक श्लोक जो है ना, ये जो है डिगुंग के ऊपर जितेंद्र सुंगन जी ने लिखा है, डिगुंग के एक लामा जी ने। लेकिन गंगे दमरो चंदी तू गिरने से नीचे चमचो तुम को बनाएंगे कुदुम छगे जला छाक सालो है ना, ये गोम्बो लुटुक जी ने लिखा है। जो पहले मैं आप लोग को गोम्बो लुटुक जी का पत्र पढ़ाया था ना, उन्हीं गोम्बो लुटुक जी ने भगवान का स्तुति किया, उसमें सब लीला को लाया है। कम से कम ये तो चेतन से लेकर के कुतुम छगे जला छाक सालो पढ़ के गोम्बो लुटुक जी ने भगवान बुद्ध के क्या कहते धप्पा को लोगों को पाठ कराने के लिए, लोगों को कुछ चाहिए ना प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, सोलते करने के लिए, इसलिए उन्होंने इसे संस्कृत में लिखा था। बाद में बोटी भाषा में अनुवाद हुआ, यह संस्कृत में था। और कम से कम तो अच्छेतम से लेकर के नीचे जहाँ तक समाप्त होता है, ये लोपन पाओ जी ने लिखा था। लोपन पाओ ये भारत के आचार्य थे, चेंडुक छुन्नी वगैरह में थे, समझ गए ना, ये भारत के आचार्य लोग थे, इन्होंने लिखा हुआ है। गोम्बो लुटुक का मतलब संगे चुमदिन देने लुंग तेंशे करके मैंने बताया ना, आज से 400 साल बाद दक्षिण भारत में आचार्य नागार्जुन नाम के व्यक्ति का उत्पत्ति होगा। मैंने जो धर्म को सिखाया है लोक कल्याण के लिए, भलाई के लिए, उसको आगे जाकर के लोक कल्याण के लिए विस्तृत रूप में गैशिंग गैपा लोगों को समझाएंगे, बताएंगे बोल के बोले थे ना, वही गोम्बो लुटुक जी है। ये दुक्थप याजुज में भी आते हैं, झेंडुक छोनी बोल के महान आचार्य जी ने आते हैं। कुल मिला करके हम लोग क्या सुनने जा रहे हैं, क्या रहे हैं, भगवान बुद्ध के चरित्र लीलाओं का दर्शन में आपको कराऊंगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले थपगे थुपजे शचे रिक्सो ठूंग शेंजी मिथुत दुजी पुंजम बा बोलते हैं। अब जितेंद्र चोबासुंगुन जी ने क्या बोला कि थपगे थुपजे थप लाखा है ना, उपाय कौशलता के साथ, है ना जी। थपगे थुपजे, उन्होंने देखा कि थपगे थुपजे शके रिक्सो ठूंग, भगवान बुद्ध जी का अंतिम जन्म देवलोक में था ना, देवलोक में, देवता के लोक में थे, तंबातो करपोल के देवता के लोक में थे। वहां पर उन्होंने नीचे जम्बू द्वीप में देखा कि अब आवश्यकता है जम्बू द्वीप के लोगों को मेरे अवतरण का, वहां पैदा होने की आवश्यकता है। इसीलिए थप के उपाय कौशलता के साथ, थप्सला खेपा के साथ अब जम्बुलिंग के लोगों को छस बताने के लिए उन्होंने देखा। ऐसा उपाय और थपला खेपा के साथ, उपाय कौशलता के साथ देखने के बदौलत वो जमचुक सिंबा, साचुपा के जमचुक सिंबा थे, 10 भूमि को प्राप्त कर चुके थे, बस अंतिम जन्म जम्बुलिंग में लेना था यहाँ पर। तो वहाँ देवलोक से उन्होंने देखा बोलते हैं, तो वहाँ महाकारुणिक उनकी दया है कि किस तरह से वे संसार के दुखी रूपी लोगों को भाव रूपी दुख के सागर से तार करूं, ऐसा देखे बोल रहे हैं। तो जा करके देखा कि मुझे शाह के खानदान का पुत्र के रूप में जन्म लेना है, समझ करके ऐसा उन्होंने देखा बोलता है। इसलिए थपगे थुपजे महाकारुणिक जो उपाय कौशल के साथ शाक्या राजा शुद्धोधन के घर में पैदा हुए बोल के स्तुति कर रहे हैं। शुद्धोधन से संगमा बोलते हैं, शुद्धोधन के रूप में पैदा हुए।
जेंजी मिथुत दुजी पुंजम्बा बोलते हैं। वो जो भगवान जो हुए थे जब उन्होंने बुद्धत्व का प्राप्त किया, संज्ञेशी हो गया बुद्धत्व। जेंजी मिथुत किसी मार, राक्षस, भूत, प्रेत, व्यक्ति, दुष्ट किसी से भी वो हारे नहीं, सबसे जीत गए होते हैं। जेंजी मिथुत कोई थुपसे नहीं करता था संगे चंदेने को, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, कोई उनका क्या कहते हैं कंपटीशन नहीं कर सकता था कि वो सबसे जितेंद्र बन गए। जितेंद्र मतलब जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है ना, वो पूरा जीत चुके हैं। शेंजी में तो कोई उनको पराजित कर ही नहीं सकता है। बाहर के दुश्मन तो क्या पराजित करेंगे, अंदर का जो मार नहीं है, क्लेश, त्वचा, चेतन, तुम उठा दो नजर, उनके ऊपर असर कर ही नहीं सकता। शेंजी में तो दुच्ची पुंजम्बा, जो दूध होता है ना, दूध दो तरह का होता है, बाहर का दूध और अंदर का दूध। दूध की बरछेद बोल के बोलते हैं ना। बाहर का दूध क्या है, हम लोग बाहर के दूध के पीछे दौड़ते रहते हैं। हमारे को जिम्पा जो आता है ना, और कुछ सामान अच्छा दिखाई देता तो हम दौड़ते हैं, वो दूध का बरछेद है, चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो बदमाश है, ये है वो है। आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर से जो हमारे को अच्छा फीलिंग होता है, अच्छा दिखाई देता है, अच्छा सुनाई देता है, अच्छा स्वाद आता है, जो अच्छा हमको चाहिए चाहिए बोलता है ना, बहुत बड़ा दुख है। वही हमको बाद में दुखी में डाल देता है, धकेल देता है दुख के सागर में, जानते हैं ना। नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए मतलब गुस्से वाले हैं, क्रोध वाले हैं, द्वेष वाले हैं, खोंठो नागल, मैं मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, सब छोटे हैं, ऐसा करके ना, जैसा कि मैं कभी भी नहीं मरूंगा सोच करके ऐसा करते ना हम लोग। मरना तो निश्चित है, कुछ है ही नहीं है संसार में, सब अनित्य है। इस तरह से मार जो दूत है, चाहे बाहर के तलवार और बाला लेकर के, धनुष बाण लेकर के दुश्मनों से तो क्या डरेंगे बोलते हैं बुद्ध, अंदर के जो दुश्मन है और मेरा मेरा मैं और मेरा का जो तकजीन का दुश्मन है, उसको भी सब समाप्त कर चुके हैं। जेंजी में तो तुझी पुंजम्बा, सब मार को उन्होंने जमशी किया, खत्म कर दिया। इतना स्वच्छ मन, जैसे कमल की फूल की तरह भगवान बुद्ध का मन जो है कमल की फूल की तरह। कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ कभी लगा नहीं होता है। कमल का फूल तो कमल का फूल है भाई, उसमें सुगंध है, इतना सुंदर है। इस तरह से मन वाला होते हैं। शेंजी में तो दुच्ची पुंजम्बा, सभी मारों को पराजित करके इस तरह के गुण वाले बुद्ध हैं होते हैं। ये स्तुति कर रहे हैं ना। दुच्ची पुंजम्बा सिर की लुम्बोता और जीवे को सामो जोंखाओं का संगेस, मतलब सोने की पहाड़ की तरह स्वच्छ सोने का पहाड़ हो, उसमें लेश मात्र भी कोई मेल मटोला ना हो, लोहे का अंश ना हो, तांबे का अंश ना हो, कीचड़ का अंश ना हो, कोई धूल का अंश ना हो, पत्थर का अंश ना हो, रेता का, सोने का पहाड़ हो तो कैसा लगेगा जी, कितना सुंदर होगा। आप सोने की पहाड़ की तरह बोलते हैं। सोना का मतलब यहाँ स्वच्छ है बोलते हैं। सोना बहुत साफ सुथरा है ना, महंगा है, साफ सुथरा है। आप लोग हमारे भाई बहन माताएं पिता सोने के पीछे बहुत लड़ते हो ना। वो सोना नहीं है, ये भगवान बुद्ध का स्तुति कर रहे हैं, ये स्तुति कर रहे हैं, तोत्पा कर रहे हैं। मतलब आपका जो है चरित्र जो है, अंदर मन भी सोना जैसा है बोलता है, आपका शरीर भी सोना जैसा। आप तो सोने के पहाड़ के समान है। सिरजी लुम्बोता, लुम्बा मतलब पहाड़, सिरजी लुम्बोता और जीवे को इतना तेज है बोलता है आपके शरीर में, इतना किरण है, इतना आभा, इतना स्वच्छ है कि देखते ही बस लोग अचंभित रह जाते हैं। सिरजी लुम्बोता और जीवे को। कौन है जी आप? ये है जी शाक्य ज्ञापो, छोला छक्का होता। आप शाक्य महाराज शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ से जो बुद्ध बन गए हैं, वो बुद्ध बन रहे हैं। इसलिए आपके खानदान से एक ऐसी दीपक आया जो ज्ञान की दीपक, जो संसार में जला हुआ है, कभी भी बुझने वाला नहीं है ज्ञान की दीपक, वो आपके अंदर है। आप शाक्य खानदान के राजवंश के चिराग ही नहीं, समस्त दुनिया के है ना जी, समस्त दुनिया के धर्मराज के रूप में आप शाक्य के खानदान से जन्मे हुए आप शाक्य राज हैं। इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शाक्य के छोला छत्ता लोग होते हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कोई शब्द ला छत्ता लोग, शब्द मतलब आपके चरण में बंधन करता हूँ शब्द बोलने से, समझ गए ना। ये चोबा जी सुम्बुन जी ने इस किया है। अब आचार्य नागार्जुन जी ने इसके बाद आप जपचनी शुरू कर दिया। क्या बताया? 강계 담보로 전주 두개네 소남 हिशे छोनी जोजेजिन 든드레 जेबा जाचन दोवाई 건조로 छोलादागी तोबराजी। ये भी तोपा किया है, प्रशंसा किया है आचार्य नागार्जुन जी ने बुद्ध को। गंगी जिसने सबसे पहले जंगचुक का सम केशी किया, गंगी दम्बरो जंगचुक तुक्के ने, जिसने सबसे पहले राजा के पुत्र होते हुए उन्हें राज गिराने से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी पूर्व पहले से वो जंगचुक सिंपा है और अंतिम जन्म के रूप में लुम्बिनी में जन्म ले रहे थे ना, लोक कल्याण के लिए आए थे। गंगी जिसने जो है अपने मन में बोधिचित्त का उत्पाद करके
जंगचुक का सेम का उत्पाद करके। ये जंगचुक का सेम है क्या चीज है? जंगचुक का सेम है कि वो सेम्स, वो मन, वो चित्त जो लोक कल्याण के लिए समर्पित है और जिस चित्त के द्वारा बुद्धता की उपाधि प्राप्त होती है, जिस मन के द्वारा वो मन, वो पवित्र मन, वो स्वच्छ मन, वो साफ सुथरा मन, करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, लोक कल्याण की भावना से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ है ना, उस तरह को जो मन, जब हमारे ये मन परिवर्तन हो गया, उस तरह का मन बन जाता है ना, उसको जंगचुक का सेम कहते हैं। इसमें दो भावना होता है, मैं लोगों का कल्याण करने के लिए मैं भगवान बुद्ध का गोफंग को प्राप्त करूंगा, उनके दमचा किया होता है। इस तरह से वो छस का नमलन करते करते संगस बन जाता है। उस तरह का जो चित्त सेम है ना, वो जंगचुक सेम, वो कैसी किया, किसने? गंगी, किसने उस शाक्य राज के पुत्र सिद्धार्थ जी ने सबसे पहले असंख्य कल्पों पूर्वक, जब लुम्बिनी में तो अंतिम जन्म में बुद्ध का समय किया ना, असंख्य जन्म पूर्वक जो है उन्होंने जंगचुक का सेम कैसे किया है। कहा जाता है कि एक बार बुद्ध कई कल्पों, कई हजारों कल्प पहले जो है नरक के प्राणी में थे बोलते हैं, नरक में थे बोलते हैं, नरक में कोई कर्मचारी की तरह नरक में। उस समय एक व्यक्ति ने बुरे कर्म किया और बुरे कर्म करके नरक में जो है एक रथ खींच रहा था बोलता है। एक आदमी इतना भारी रथ, जैसा कि 10-12 टन का कोई सामान ले जाके रथ खींच रहा था। उस व्यक्ति का हालत, शरीर सिकड़ा हुआ, इतना कमजोर, कंधे से खून बह रहा है और खींच नहीं पा रहा है। पीछे से जैसा घोड़े को कोड़े मारते हैं इस तरह मार रहे हैं उस व्यक्ति को, वो खींच नहीं पा रहा है रथ को, चिंता को ढेंसे नहीं कर रहा है, खींचने। उस समय भगवान बुद्ध जो है उस समय के कई कल्पों का पूरा वहीं के सब उनके मन में जो दया आ गया होता है, इसका मैं काश मैं इसका सहायता कर सकूं, तो तुरंत जो है ऐसी भावना आ गई कि इसका मैं सहायता करूंगा। जा करके उस रथ को उन्होंने खींचा था पवित्र मन से, शुद्ध मन से। वहां सबसे पहले भगवान बुद्ध ने जंगचुक का सेम कैसे किया जी, जालवा में वो जो रथ खींचने में सहायता किया, वहां सबसे पहले उनके मन में दया की भावना आ गई। सबसे पहले कई हजारों कल्प पहले, उसको गिन ही नहीं सकते हैं, इतना जिंदगी से पहले की बात है। वहां पर उन्होंने उस रथ खींचने वालों को रथ खींच करके सबसे पहले बोधिचित्त का उत्पात वहां किया था बोलते हैं। उसके बाद तो कई बार मैंने बताया ना, भगवान बुद्ध ने 500 बार मनुष्य के जीवन में और 500 बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म करते हुए लोगों का कल्याण किया। मनुष्य के जन्म में, मनुष्य के योनि में जन्म लेते हुए मनुष्यों का कल्याण किया और पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर पशु पक्षियों का कल्याण किया जंगचुक संपन्न ने। कांगे दांबरो जंगचुक थुके ने सोनम ईशे छोनी जो, उसके बाद उन्होंने पुण्य का संचय किया। सोनम का छो और ईशे का छो दो चीज होता है, समझ गया ना। एक पुण्य अर्जित करना होता है, एक ज्ञान अर्जित करना होता है। यह पुण्य अर्जित करना क्या चीज है? पुण्य किसे कहते हैं? है क्या चीज है ये पुण्य? घेवा बोलते हैं इसको संस्कृत में पुण्य, हमारी भाषा में घेवा। घेवा सा दीपापंग, घेवा सा दीपापंग। घेवा क्या चीज है? जब मन के अंदर निंजे की भावना आता है, दया की भावना आता है, करुणा की भावना आता है, और मन के अंदर जब प्रेम की भावना आती है, मैत्री की भावना आती है, और मन में बिल्कुल खोट ना हो, मन स्वच्छ होता है, समझ गया नहीं? अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा, दत्पा, बुद्ध के प्रति श्रद्धा, छोट नमलन करने की जिज्ञासा करने का मन करना, समझ गया नहीं? इस तरह का भावना जब हमारे अंदर आ जाए, जंगचुक का सेम आ जाए, बुद्ध के प्रति श्रद्धा हो, पाप कर्म नहीं करना, अच्छा कर्म करना, अच्छा कर्म, दया की भावना, निंजे की भावना, जंबा की भावना, मैत्री की भावना, और क्या कहते हैं, करुणा की भावना, समता की भावना। उस भावना के द्वारा जब हम वाणी से कोई वचन बोलते हैं, वो घेवा का वचन हो जाता है। क्योंकि प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो आदमी किसी को गाली दे या चुगली करे या उल्टा सीधा करे। क्यों देगा? मन साफ है ना जी, मन में करुणा भरा है, मैत्री भरा हुआ है, प्रेम हो ही नहीं सकता कि वो किसी को गलत भाषा करे, नहीं हो सकता ना। वो घेवा बन जाता है वाणी से। अब शरीर से किसी की हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, उल्टा सीधा हिंसक प्रवृत्ति वाला काम नहीं करेगा, वो घेवा हो जाता है पुण्य। पुण्य करने से उसका फल पुण्य ही होता है, पाप करने से उसका फल पाप ही होता है। इसीलिए सोनम की सब मैंने बताया था ना, फरल तुच्छम पर डुक, दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता है ना जी, शांति पारमिता, उसके बाद प्रयत्न पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, जिम्बे फरल तुच्छिम्बा है ना जी, जिम्बा छुटिम से फरल तुच्छिम्बा, जोपे फरल तुच्छिम्बा है ना जी,
उसके बाद क्या है सोपा चोटी फालतू चिंबा समथिंग जी फालतू चिंबा शरफ जी फालतू चिंबा बोल के फालतू चिंबा बताया ना मैंने। इसमें से जिम्बा देना, ठिम सुंशी करना। जिम्बा देना क्या, जिम्बा देने का मतलब ये नहीं यार आपने अहंकारी में किसी को दे दिया, छम्मे जला दिया, नीचे छम्मे जलाना भी एक जिम्बा की तरह है ना। छम्मे जला दिया और कोरा में जा रहे हो, व्यक्ति से कह रहा है यार मैंने तो 100 छम्मे जलाया, तू क्या ऐसे घुमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जाके छम्मे जलाओ, रिवर्सल में आके क्या फायदा, ये है वो है। बोला ना किसी आदमी ने, वो बोलने वाला व्यक्ति महापापी होगा। जब घेवा किया तो बोल क्यों रहे हो, समझ गया ना। सब कुछ कर चाबी फेंक दरिया में, जिम्बा नहीं करना है, समझ गया ना। बिना जिम्बा से एक मर में जलाओ शुद्ध मन से, किसी को भको मत। जलाया वहां मोला अच्छा लगो, लोग का कल्याण हो, लोगों के मन के प्रति दीप जले, दिया जलाना बन गया। कोरा करो चुपचाप, और कोरा करते समय सोचो यार मैं कोरा कर रहा हूं, मुझे कोरा करना चाहिए क्योंकि ये गुरु मुझे का नैसे चोपे मन, यहाँ कोरा कर रहा हूं। अगर मैं लोगों से बातचीत करे मन भटका दिया तो गुरु मुझे देख रहे हैं। मैं तो लोगों को धोखा दे सकता हूँ कि मैं कोरा कर रहा हूँ बोल के ढींग मार सकता हूँ, अहंकारी कर सकता हूँ, उल्टा सीधा बात कर, लेकिन देखने वाला है भाई गुरु मुझे हमेशा। आप यहाँ कोरा लगा रहे होते हो ना, मैं समझता हूँ कि गुरु मुझे की नजर आपके ऊपर है, ये सही में मेरे प्रति दत्ता वाला व्यक्ति है क्या, ऐसा ही ढोंगी है, पखंडी है, उनको पता है। समझ गया ना, ये धर्म की बात चल रहा है, समझ गया ना। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, मन से करना चाहिए केवल। मन साफ सुथरा हो तो कोरा करने से कोरा बन जाता है। मन साफ सुथरा हो, मरमे जलाने से मरमे जल जाता है। मन साफ सुथरा हो, छौक कुर्सी करने से छौक हो जाता है। मन साफ सुथरा हो, कुछ भी नहीं करके आप बैठे हुए हैं, वो तो बहुत ही उचित है। चुपचाप अपने कमरे में बैठा, संगेश का नमलन किया, बैठे हो चुपचाप, कोरा भी नहीं गया, छम्मे भी नहीं जलाया, फिर भी वो बहुत बड़ा धर्म हो जाता है जी। छस का मतलब कोरा ही जाओ, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, गलत बात है। भगवान बुद्ध 6 साल था एक वृक्ष नीचे बैठे, क्या वो छस नहीं किया, वो तो संगेश बन गए। कहाँ कोरा गया, कहाँ छम्मे जलाए उन्होंने, बात की बात है ना। मन पवित्र हो तो सब छस बन जाता है, पवित्र नहीं तो ना छस। सोनम की छस मतलब ये छप छम्मे मरमे कोरा, जिम्बा तंशी करना, दान देना, ठिम सुंशी करना, शील का पालन करना, सहनशीलता को लाना, समझ गया ना। सहनशीलता, कोई आपको गाली गलौज देते तो सहन कर लो, पी जाओ, जहर को पीट जाओ, उसको अमृत में बदलो, हमारे ऊपर है वो भावना। फिर प्रयत्न करो, धर्म करने की प्रयत्न करो। पाप कार्य कर रहा हो तो उसको रोको, पुण्य के कार्य को अधिक से अधिक करो, इस तरह के भावना, गौम जमलेंग करो। ये सब सोनम की छौक्स हो जाता है। सोनम की छौक्स, सोनम साक्षी करना, छक छो में मर में, ऐसे ही समझ लीजिए। अब ईशे की छो बोलने से ये थोड़ा ज्यादा ही सूक्ष्म और बहुत गहरा हो जाता है। ईशे की छो का मतलब बिल्कुल तकसीम नहीं करके सभी संसार को माया रूपी, स्वप्न रूपी कुछ नित्य चीज है ही नहीं है, सब खत्म होने वाला है। क्यों हम लोग इसमें फंसे प्रपंच में, कुछ अगले जन्म के लिए भी तो कुछ कमाए सोच करके दक्षिण को कम करना, आसक्ति को कम, निरासक्त भाव से संसार की वास्तविकता को जान करके निरासक्त भाव से जो है धर्म का निम्न करना शरफ हो जाता है। शरफ का मतलब हकीकत को हकीकत के रूप में जाने तो आपके अंदर शरफ है। असलियत जो है ना, संसार की असलियत, उस असलियत को आप असलियत के रूप में जानो तो फिर आपके अंदर ज्ञान है, कह सकते हैं हम लोग। असलियत क्या है पता है ना, तुझे तमसे मिताक, जितना भी संसार की चीजें हैं दिखाई देने वाला, सुनने वाला, जो सब कोई ग्यू और कैन से जुड़ करके पैदा हो गया है ना जी। कुछ हेतु और प्रत्यय से पैदा हुआ है, इसके ऊपर ना कोई ईश्वर या कोई प्रभु या ऐसा शक्ति या मानने का गुंजाइश है ही नहीं है। बुद्ध ने इसका विरोध किया था। यह अपने आप जैसा जैसा कर्म, जैसा जैसा ग्यू कैन होता है, वैसा वैसा फल कुदरत का कानून है, यह विश्व का विधान है। किसी प्रभु या भगवान ने बनाया नहीं है, यह खुद है, समझ गया ना। यह जितना भी हेतु और प्रत्यय से जुड़ा हुआ जितना भी संसार के प्रपंच है, वैसा ये हेतु और प्रत्यय के कमजोर होने पर, नष्ट होने पर सब खत्म होकर के जीरो में आ जाता है। उसको आप जानोगे तो हकीकत में वो शरफ है। जैसा कि पैदा होने के बाद मर नहीं है, आप सही में जान रहे हो तो शरफ है। बिल्डिंग बनाने के बाद गिरे गई, आप जान रहे हो तो शरफ है। हम लोग सब मिल रहे हैं, जुदाई हो नहीं है, ये जाने तो शरफ है। समझ गया ना। कमाया है तो गंवाना ही है, वो खत्म हो नहीं है, उसको अनुभव से जाने तो वो शरफ है। समझ गया ना। ये भगवान बुद्ध ने जो सिद्ध किया है, सोनम की छौक्स और हिस्से की छौक्स, इसो के कहते हैं। फालतू चिंबा युग में पहले फालतू चिंबा से लेकर पांचवा तक सोनम की छौक, और कहते हैं पांचवा तक, और छठा जो है उसको आप हिस्से की छौक बना दें। हिस्से का छौक मतलब ज्ञान को अर्जित करना। मीला रेपा जी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, तान देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ बिल्कुल भिखारी के रूप में थे।
फिर भी उन्होंने चोक साक्षी किया, वो मिलारेबा बन गए, समझ गए ना। सोनम हिशे सोंगने जोजे चिंग भगवान बुद्ध ने जो है सोनम की चोक और हिशे के चोक को सब परिपूर्ण करके समाप्त करके द्विंद्र जेबा जचन दवाई द्विदिर अब खुद तो सिद्ध करके अब 7 चुपा की जंगचुप सेंपा के गोफंग के पास पहुंचे हुए हैं। अब इस समय जो है द्विदिर जेबा जचन दवाई इस अभी इसके दौरान जो है देवलोक में थे ना, देवलोक से अवतरित होके यहाँ पर उन्होंने लीला दिखा दिया जी। देखो छस करेगा तो इस तरह से करना बोल के उन्होंने रास्ता दिखाया, बुद्ध ने लीला दिखाया। द्विदिर जेबा जचन, जेबा का मतलब लीला होता है, जीवन की चरित्र लीलाएं जो उसको विस्तृत रूप से दिखाया। क्यों? इस दोवा समझन थमचे जो है हम लोग जो संसार के प्राणी जो है सब अज्ञान वश मारिपति मोंबा नहीं जानने के वशात जो है हम लोग सब सोच रहे हैं यार दुनिया से ज्यादा सुख कहीं भी नहीं है, हम लोग सोचते हैं ना, गलत है। आप लोग ने देखा होगा अमीरों को रोते हुए देखा होगा, गरीबों को हंसते हुए भी देखा होगा। क्या निश्चित है यार? अमीरों को रोते हुए देखा होगा, गरीबों को हंसते हुए देखा होगा, तो वहीं पता लगता है कि अमीरीपन में सुख नहीं है। सुख होता तो कभी रोता नहीं, समझ गया ना। ये सब देख लिया उन्होंने, तो इसलिए द्विदिर जेबा गुंजर छेला देखे, इसलिए जेबा समस्त लीलाओं को दिखाते हुए लोक कल्याण के लिए उनका अवतरण इस जम्बू द्वीप में हुआ था। किसका? भगवान जी का, बुद्ध जी का हुआ था। गुंजर छोला धागी तोपरा जी, आप तो संसार के नाथ हैं बोलते हैं, आप तो संसार के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं बोलते हैं। जो अनाथों का भरण पोषण करता है, पालता है, पोसता है, रोटी कपड़ा मकान सब देते हैं अनाथों के लिए, उसको क्या बोलते हैं? नाथ बोलते हैं। आप अनाथों के नाथ बोलते हैं, आशरण के शरण है बोलते हैं। अब अंधेरे में डूबे रहने वाले लोगों को प्रकाश देने वाले आप ज्ञानी हैं बोल रहे हैं। तो इसलिए आपको जो है मैं कुछ प्रशंसा कर रहा हूँ, ये प्रशंसा यहाँ से नीचे है। अब यहाँ से नीचे जितवचन में विस्तृत रूप से चला जाता है, समझ गया ना जी। अब कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? तंगे तंब्रो चंचु तुगे ने सोनम हिशे सोने जोजे जिंग द्विद्र जेबा जचन दोवाई गुंजर छुला धागी तोपरा जी, अनाथों के नाथ, अशरण के शरण, भगवान जिसने अंदर की गलत विचारों का सब भगन कर दिया है, खत्म कर दिया है, जिसने अंदर की राग द्वेष काम अज्ञान अहंकार ईर्ष्या त्वचा शैतान तिमुख ठाठा मजल वगैरह वगैरह तो हमें दुखित बनाता है, गलत विचार, उन सब का भगन कर दिया, उसका नष्ट कर दिया, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। इसलिए भग है, समझ क्या? भग का अर्थ यह है। वाहन क्या है? वाहन आपके अंदर पूरा करुणा है, दया है, प्रेम की भावना है, ज्ञान है, समस्त गुण है जो लोक कल्याण के लिए पर्याप्त है। वाहन समझ गया? बुरे विचारों का भगन करके जिसके अंदर लोक कल्याण के प्रति बिना किसी भेदभाव के, रंग रूप की भेदभाव से, छोटे बड़े सुंदर असुंदर है ना जी, ऊंच नीच का भेदभाव है नहीं, सबके प्रति समता का भाव रखने वाले ऐसे गुण वाले भगवान बुद्ध, आप महाकारुणिक हो, आप ज्ञानी हो, आप जितेंद्र हो, अब अनाथों के नाथ हो, गरीबों को पालने वाले भगवान हो। इस तरह से वान जुड़ गया, भगवान, समझ गया ना। उस भगवान को मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ और उनकी स्तुति करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ। अब प्रशंसनीय है, आपको प्रशंसा करना उचित है, ऐसा बताया गया है, समझ गया ना जी। अच्छी तरह से श्रवण करना इन चीजों को, समझ गया ना। ये भगवान बुद्ध की लीला, मैं भगवान बुद्ध के जीवन को पूरा रूप से आपका मैं दर्शन करा दूंगा। कल से और थोड़ा विस्तृत रूप में जाएंगे ना, तो आपको फिर पता लगेंगे कि बुद्ध क्या चीज है, बुद्ध किसे कहते हैं, समझ गया ना। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जाना पड़ेगा ना, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा कथाएं आएगी कल से, तो उसको फिर विस्तृत रूप से जहां तक हो सके 10 दिन के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लानम तुमसे दुलवे दुलचेन ने लाले बबले लंगचे तरशे सिंह रिकला जिग्ने लम्बो जुंचुल जी लुमसु जुपरा जेला छाला, समझ गया ना। कहते हैं कि यहाँ के लानम ध्वंसे दुलवे दुलचेन ने लानम ध्वंसे अनेकों कल्प पूर्वक संजय मरमेद जी का तनबार बचे था यहाँ जम्बूद्वीप में दीपंकर बुद्ध जी का मरमेद बोल के सुना। संजय मरमेद, कई बुद्ध आ चुके हैं, कई बुद्ध आएंगे, और वो बुद्ध हम लोगों में से एक बनकर होता है। इसीलिए तो नंबर संख्या में बड़ा ही
एक मतलब बन जाता है। हर कोई व्यक्ति जो बुद्ध की तरह प्रयत्न करे, बुद्ध की तरह अपने जीवन को बलिदान करके सत्य की खोज करे, हम आप जो भी है सब बुद्ध का गौतम प्राप्त कर सकता है। समझ गए ना? वो बुद्ध जिसने बुद्धता प्राप्त किया वो भी हम आप जैसे एक इंसान थे, मामूली इंसान थे। तो वही मैं बता रहा हूं, अनेकों कल्पों से पूर्व, कल्पा के कितना हजार साल का एक कल्प होता है, वो अनेकों कल्प पूर्वक इस जम्बू द्वीप में, जम्बूलिंग में संजय मरमेद का तनपारिंबुछे था। संजय मरमेद जी यहाँ विचारते थे। उस समय जब संजय मरमेद जी अपने चेलों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, अपने गेलों के साथ जब कहीं संयम की तरफ जा रहे थे भिक्षा मांगने के लिए, लुंगजेन लेकर के अपने चीवर जैनी शर्तक को पहन करके चीवर धारण करके जा रहे थे, तो रास्ते में एक सुमेत नाम का ब्राह्मण ने दर्शन किया भगवान का। ब्राह्मण का नाम सुमेत नाम है, सुमेत, शायद इसको लोब्जांग बोल सकते हैं उसमें, हमारे इसमें जो भी हो, सुमेत नाम का। और उस सुमेत नाम का जो ब्राह्मण था उनका पत्नी का नाम था सुमित्रा, है ना जी। जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचे तो उसके अंदर इतना श्रद्धा आ गया कि उसने साक्षात बुद्ध का दर्शन किया ना, उसके अंदर अकृत्रिम बनावटी धप्पा नहीं, सही में धप्पा आ गया अंदर में, हृदय में एक शीतलता आ गई, इतना सहजता आ गया, आनंद आ गया। वाह, मैंने भगवान बुद्ध का दर्शन किया है। भगवान संजय मरमेद शायद हुआ नहीं उसमें, संजय मरमेद का दर्शन किया होगा। इतना सामने देखो तो कीचड़ है, छोटा सा नाला है, कीचड़ है, कीचड़ पड़ा हुआ है, कीचड़ लखपत है। वहां से बुद्ध आ रहा है, उसने सोचा कहीं कि बुद्ध के शरीर में कहीं गंदगी ना लगे, उनके शरीर में कहीं कीचड़ ना लगे, कहीं कंकर पत्थर धूल ना लगे। तो उनके मन में धप्पा था, तुरंत लेट करके जंबा की तरह बन गए ताकि बुद्ध उनके ऊपर से निकल जाए। इतना श्रद्धा था कि लेट गया उसके ऊपर, औंधे मुंह लटके जो लेट गए ताकि बुद्ध जो ऊपर से चले। तो बुद्ध ने, दीपंकर बुद्ध जी वहां तुरंत उन्होंने एक भविष्यवाणी किया, अपने शिष्य थे ना, उनको भविष्यवाणी किया। उनके अंदर जो धप्पा देखा ना, जमा माइंबा धप्पा, असली धप्पा देखा तो बोला कि देखो भिक्षुगण महासंघ, ये जो सुमेध नाम का ब्राह्मण है, ये जो सुमेध नाम का ब्राह्मण है, इसके अंदर ऐसी श्रद्धा और ऐसी पवित्र मन है इसके अंदर, ये व्यक्ति जो है अनेक कल्प वर्ष पश्चात बाद में जम्बू द्वीप में शाक्यमुनि बुद्ध के नाम से बुद्ध हो जाएगा। समझ गया ना? ऐसा भविष्यवाणी करके फिर उन्होंने कहा, हे भिक्षु, यही नहीं है जो इनका जो है पत्नी है, जो सुमित्रा नाम की इनकी सहभागिनी पत्नी है, ये भी कई जिंदगी तक इसका सहभागिनी बन करके अभी सुमित्रा नाम की है। और यही सुमित्रा जो है भविष्य में जब शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म शाक्य खानदान शुद्धोधन के पुत्र के रूप में जन्म होगा, उस समय वहां भी ये सहभागिनी बन के यशोधरा के नाम से जो है सिद्धार्थ गौतम का सहभागिनी बनी। सिद्धार्थ की पत्नी थे ना, संगेश का पत्नी थे यशोधरा। अनेकों कल्प वर्ष पूर्वक बुद्ध दीपंकर जी ने ऐसा भविष्यवाणी कर दिया, वहां लुंघन कर दिया। समझ गया ना? समझ आया ना? उस लुंघन करने के बावजूद जो है अनेकों कल्प तक बोधिसत्व सुमेध जी ने सोनम और ईशे का तो साक्षी किया, दान दिया, शील का पालन किया, सहनशीलता का तप किया, प्रयत्न किया पुण्य को संचय करने का, फिर क्षमता किया, जिन्हें लांथों बम नमलन किया, फिर शरब के बारे में नमलन करते 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 जो है अंतिम जन्म के रूप में जब उन्होंने लाई बो दम्बा तो करबो बोल के लायुल में उनका जन्म हुआ था, वहां से उन्होंने नीचे देखा, जो दीपंकर बुद्ध ने जो भविष्यवाणी किया था वो वहां बीतने के लिए वो समय आ गया। फिर जाकर के वहां से अवतरित होकर लुम्बिनी में माया देवी के कोख में चले गए थे ना बुद्ध। समझ गया? अभी विस्तार से बता रहा हूँ। संगे मरमेद जी ने लुंठन किया, समझ गया जी? तो यही बताओ, लानम दंजे दुलवे दुलचने, लानम दंजे देवलोक में श्वेत केतु दंबतो करको बोल के वहां उनका जन्म हुआ था। वहां पर दंबतो करको, वहां पर देवताओं का कल्याण करते हुए बोधिसत्व जब वो साचू में पहुंचे थे, साथ हमको निपा सुंबा को क्या था ना, साचू का जंजू संभाई अब संगेश का जप्पा करके जम्बुलिंग में आने वाले। तो वहां पर उन्होंने जो है देवताओं का कल्याण करके जेपे दुलवे द्विछन्ने, अब उन्होंने नीचे नजर मारा
वो जब दीपंकर बुद्ध ने भविष्यवाणी किया था उनमें आभास हुआ। फिर नीचे जम्बूद्वीप की ओर देखते हैं अपने दिव्य चक्षु से, वो समय आ गया, मुझे जम्बूद्वीप में जाना है समझ करके द्विचे ने अब लोक कल्याण के लिए, जम्बूद्वीप के मानवों के कल्याण के लिए, पशु पक्षी जो भी है, साधु संजन और सबके कल्याण के लिए मुझे जम्बूलिंग में जाना है। खेन ने वो जान करके लाले बमने लक्षण तरशिक सिंह बोलते हैं। उसके बाद जो है ला ने बमने लक्षण तरशिक सिंह रिगला जिंगने लमो जुंटुल जी लुमसु जुबरा जिला सांसल। उसके बाद लाले बाप ने वहां से देवलोक में एक सफेद हाथी 6 दांत वाले, वो हाथी के सूंड में कमल का फूल लिए हुए, ऐसा माया देवी की कोख में चले गए। समझिए ना, इसको विस्तृत से बताऊंगा। लाले बमने लंचेतारचिन रिगला जिंगने लमो जुनो। अब उन्होंने देखा कि मैं ब्राह्मण में जन्म लूं कि वैश्य में जन्म लूं कि वो देख के तो उन्होंने कहा इस समय मुझे कई बुद्ध ब्राह्मण में जन्म हुए थे, कई बुद्ध इसमें अनेक जाति, क्योंकि बौद्ध धर्म में जातिवाद का कोई विरोध ही नहीं है, सब मानव जाति एक मानते थे ना। इस समय वो गैलरिक में जन्म करने के लिए उन्होंने देखा कि मुझे माया देवी के घर में जन्म होना है, शुद्धोधन महाराज जी के जलपोषित शर्मा के घर में जन्म लेना है करके उन्होंने देख लिया। रिकला सिंह ने लामो जुंटुल महाराज शुद्धोधन की पत्नी माया देवी जी जुंटुल जी लुमसु जुबरा जिला चांसल उनके कोख में चले गए। इस तरह भगवान बुद्ध के देवलोक से अवतरण होकर के माया देवी के कोख में 6 रंग नहीं, एक हाथी जो सफेद रंग वाले 6 दांतों वाले सूंड में कमल लिए हुए, इस तरह से उनका बर्दों से होकर के माया देवी के कोख में जन्म ले। इस तरह से बुद्ध के इस लीला को मैं नमस्कार करता हूँ। लुमसु जुबरा जिला चांसल लीला को नमस्कार करता हूँ। ये हुआ कैसे है देखिए, उन दिनों में है तो भगवान बुद्ध के जो खानदान थे ना वो बड़ा लंबा चौड़ा है, वहां नहीं जाना है क्योंकि फिर उसी में फंस जाएंगे हम लोग। हमको दिखाना है भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी कृपा को। हिमालय के तराई में उन दिनों में शायद भारत का अंश हो सकता है, आप गए होंगे, लुम्बिनी में गए होंगे, कपिलवस्तु में गए होंगे। कपिलवस्तु में वहाँ एक 2 राज्य, कपिलवस्तु शाक्यों का राज था और उसके बगल में कोलिय गणतंत्र बोल के 2 राज्य थे, समझिए ना, जलकप ऐसा थे। तो शाक्या के उसमें सिंहनु बोल के एक महाराजा थे, उनके पुत्र शुद्धोधन जी ने कोलिय राजा अंजन की पुत्री माया देवी से शादी किया। माया देवी उनको झुंझुन लांजे बोलते थे, माया देवी। फिर अंजन बहुत खुश हो गया, मेरा पुत्री जो है क्या कहते हैं शाक्या खानदान के महाराज शुद्धोधन से ब्याहने वाले हैं। तो उन्होंने माया देवी का ब्याह रचाया महाराज शुद्धोधन के साथ, है ना जी। ब्याह रचने में उनकी दूसरी भी पुत्री थी, छोटी पुत्री प्रजापति गौतमी बोल के, उस लड़की को भी, छोटी वाली को भी साथ में देते, इसको भी आप रख लो बोल के ना। उनके 2 पत्नियां थी, महाराज शुद्धोधन की 2 पत्नियां थी। पहले पत्नी का नाम जो बुद्ध की माता हुई थी ना माया देवी झुंझुन लांजे, और छोटी वाली प्रजापति केगुई दम्मो बोलते हैं। ये 2 ब्याह लिया, कई वर्ष हो गए, दोनों को कोई संतान हुआ ही नहीं, ना ही माया देवी जी को हुआ ना ही प्रजापति गौतमी को हुआ। अब माया देवी बहुत परेशान, 50 साल की उम्र को होने को आ रही है, कोई संतान नहीं है, नहीं कि बड़ी रानी को संतान, ना कि छोटी रानी को संतान है ही नहीं है। बड़ा पूजा पाठ कर्मकांड, उन दिनों में वैदिक परंपरा था, वेद के अनुसार कई यज्ञ अनुष्ठान किया, सब कुछ किया। हम लोग कुरिम बोलते हैं ना, कुरिम चौबा चले खूब किया, फिर भी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। उन दिनों में शाक्या के जो राज्य होता था उसमें जो है एक उत्सव होता था आषाढ़ के महीना में, आषाढ़ पता ना जी, आषाढ़ के महीने में उत्सव होता था। वो 1 सप्ताह के लिए चलता था, है ना जी, 1 सप्ताह से 7वीं शुक्ल से लेकर क्या कहते हैं पूर्णिमा तक, मतलब 7 दिन का। बड़ा उस दिन जो है माया देवी के अंदर इतना वो आ गई, सिद्धार्थ गौतम की माता जी ना, उनके अंदर इतना उत्तेजना आ गई, बड़ा खुश, बड़ा आनंदित, बड़ा सहजता, इतना खुशी कभी अनुभव ही नहीं हुआ, इस तरह खुशी होती है। वो पूरा अपने शरीर को नहा धो करके अलंकार लगा करके कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक्टिव हो गई हो, बहुत ही क्रियाशील हो गया। महाराज शुद्धोधन हैरान, क्या हो गया है रानी जी को, है ना, ऐसा करके। फिर ऐसा इंद्र इतना सुंदर लगने लग गई कि माया देवी संगे चुमने देगा मायूम कि जैसा कि देवलोक से देवपुत्री नीचे जम्बूद्वीप पर आए हो, इस तरह से सुंदर लगने लगे, ऐसा सुंदर लगने। फिर सुंदर लग करके फिर और दिन भर वो लोग उत्सव में करते वो लोग सब जो है वो हो गए, क्या कहते हैं, थक गए शाम के सामने। तो थक गए तो रात को थक करके माया देवी जी सो जाती है, गहरी नींद में चली गई माया देवी, निंद्राओं भी है ना, नींद ऊपर सो गए, ऐसा गहरी नींद में
गहरी नींद में जाके उसने एक सपना देखा, माया देवी जी ने सपना देखा। सपना क्या देखा कि माया देवी जी का जो शैया है ना, जो चरपाई है, उसको 4 दिशाओं से देवता लोग आकर के उनके चरपाई को उठा के ले गए। सपना में चरपाई को उठा के ले गए, ले करके किसी एक पहाड़ी जगह में, चारों ओर बड़ा सुंदर बगीचा सुगंधित, इतना जैसा कि झिंगम जैसा लगता हो, वहां ले जा करके वो चरपाई को वहां रख दिया। फिर उसके बाद देवता लोग चले गए, फिर देवियां आ गई वहां। देवियां ने माया देवी को उठा करके मानसरोवर सोमवंग युसो में जाकर के स्नान किया, स्नान कराया। समझ गया ना, ऐसा सपना में आया। स्नान करा करके फिर वहां से फिर उनको वैसे ही फिर चरपाई पर लेटा दिया। तो उसके बाद उन्हें फिर दूसरा सपना आ गया। सपना क्या आता है कि देवलोक से एक, वही सफेद हाथी वाला का, वो डिटेल में बता रहा हूँ ना जी। सफेद हाथी 6 दांत वाला, हाथ में कमल का फूल लिए हुए, माया देवी के दायां इसके अंदर प्रवेश कर गया भगवान। वहां लाइव भूतंबा तो कर वो लाइव में थे ना, वहां से लोक कल्याण के लिए हाथी के रूप में आकर के माया देवी के दाएं तरफ अंदर चले गए, पेड़ में, कोक में फिर उन्होंने कोक धारण किया। समझ गया ना, ये बात है। फिर यहाँ धारण किया, क्योंकि जिस दिन वो बहुत सुधरी हुई थे ना, उस दिन महाराज शुद्धोधन के साथ सहवाग हो गया ना, मिलन हो गया ना, मिलन तो होना जरूरी है। फिर उसके बाद ये सपना आकर के ऐसा वहां ये चीजें हो गई। समझ गया ना जी, समझ में आ गया। ये है, ऐसा है। यहाँ हम लोग कहाँ जा रहे थे? रिगना जिग्ने लमो चुंचुल जी लुमसु शुभ्रा जेला छक्सा लो। उस समय राजमहल में थी ना, थक करके बैठी थी। लुमसु जुब्रा जेला छक्सा लो। उस दिन सेपा गया था जी, सोजोंग में बैठी हुई थी माया देवी जी, सोजोंग कर रहे थे। उस सोजोंग करते समय उस समय संगे चुम्बन ने गर्भ में प्रवेश, इसलिए छेपा गे को सोजोंग करने से बहुत पुण्य होता है। उस दिन भगवान बुद्ध जी का गर्भ प्रवेश हो गया। समझ गया ना जी। हाँ, 6 दांत वाली सफेद हाथी के रूप में। लुमसु जुब्रा जेला छक्सा लो बोलते हैं। रिंगने सिंगने लमो जुंटुल जे लुमसु जुब्रा जेला छक्सा लो। दावा चुजो शाजे सेरबोनी ताशी लुंगे छतु तंबे से संदम जाजिंगी तो छेंचुनी झांचू रिक्सू में जे छक्सा लो बोलते हैं। उसके बाद कोक में गर्भ प्रवेश हो गई। तो उसके बाद कल जैसे ही उठती है तो उनको सपना आया था ना। सपना के बारे में महाराज शुद्धोधन से पूछा, या सेसंगमा से पूछा, मेरे को ऐसा सपना आया, ये है वो है, इस सपने का मतलब क्या है बोल के फिर उन्होंने पूछा राजा से। फिर राजा संदिग्ध हो गया, कहीं कोई अनहोनी घटने वाला तो नहीं है बोल के थोड़ा दुखी हो गए। राजा जी चिंतित हो गए, समझल आ गया उनको, चिंतित हो गए। फिर उन दोनों वहां पर क्या कहते हैं, एक वहां पर होते हैं ना उन दिनों में ज्योतिष लोग होते हैं, जो स्वप्न विशेषज्ञ जो ज्योतिष लोग होते हैं, उनको उन्होंने दिखाया, स्वप्न ज्योतिष लोगों को दिखाया। तो दिखा करके उनमें से 8 स्वप्न ज्योतिष लोग थे, 8 प्रकार के, शंभ वगैरह, कुछ कौंडन्य वगैरह, ऐसा 8 प्रकार के उस समय ज्योतिष में प्रांगत जो स्वप्न मिलम ताजे के सिंह, मिलम के बारे में, सपना के बारे में जो फल बताने वाला ने उनसे पूछा कि ऐसा सपना है। फिर उन लोगों ने मीटिंग किया, फिर वेद शास्त्र को देखा, फिर ज्योतिष किया। पर उसमें से एक जो बुजुर्ग थे उन्होंने उठकर कहा, महाराज घबराने की कोई बात नहीं है, आपके घर में पुत्र रतन का जन्म होने वाला है। आपके घर में पुत्र रतन की जन्म होने वाला है। अब और वो पुत्र भी ऐसा होगा, अगर वो पुत्र अगर राजघराने में रह करके राज्य चलाता है तो वो चक्रवर्ती राजा हो जाएगा, महान सम्राट हो जाएगा। अगर घर में नहीं करके ग्रह त्याग करता है तो बुद्ध हो जाएगा और संसार में उनका नाम रोशन हो जाएगा और लोक कल्याण करते हुए उनका नाम कभी संसार से मिटेगा ही नहीं बोल के ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी किया। पहले जन्म से पहले ये एक भविष्यवाणी है। पर उसके बाद जो है भगवान कोक में चले गए ना, गर्भ धारण कर लिया। 300 दिन तक भगवान माता की कोक में रहे। 300 दिन तक मतलब 10 महीना, 9 महीने रहते हैं ना। दावाचू बर्दू संगी चुमनिंदे मायुंगी लुम्स शुभ्रे अगसवान दावाचू दो। जैसा ही 10वां महीना खत्म हो गया तो उस समय उनको प्रसव का पीड़ा होने लगा। प्रसव का अब प्रेगनेंसी थे ना, अब पुत्र जन्म होने वाला, उनको पीड़ा लगा।
तो उन्होंने अपने पतिदेव महाराज शुद्धोधन से कहा कि मुझे अपने पीहर में जाना है। पीहर मतलब मुझे अपने पिताजी के घर में जाना है, पुत्र का जन्म होने वाला बोल के महाराज यप जेतंगमा जी से शुभालिश किया। उन्होंने प्रार्थना किया मुझे पीहर में जाना है। तो राजा ने बंदोबस्त किया, रथों को सजाया, उनके साथ कई सहेलियां, कई लोगों को जो उनको सहायता करने वाले थे उनको सब तैयारी करके चले गए। चलते चलते रास्ते के बीच में एक इतना सुंदर बगीचा, वन जैसा कि सिंघम ही लगता है संगेस का। वहां पर सरोवर भी है, झील भी है, फूल पत्तियां भी है, हरे भरे सुंदर चिड़िया चहक रही है, कोयल कूक रही है ना जी। इतना सुंदर दृश्य, विभिन्न प्रकार के फूल, जड़ी बूटियां, पत्ती, इतना सुगंधित, इतना एक सुंदर दृश्य वाला एक बगीचा में पहुंच गया। वही बगीचा लुम्बिनी है, लुम्बिनी था उसके में, लुम्बिनी नाम के बगीचा। वहां पर माया देवी जी को प्रसव पीड़ा होने लग पड़ा। तो उन्होंने फिर कहा अपने सहेलियों से, रुको मुझे यहाँ रुकना है, क्वेश्चन के बाद रुकना है, तशी लुम्बी रुकना है। फिर वहाँ रुके, रुक करके फिर वहाँ पर उनको जो है कुछ पीड़ा जैसा होने लग पड़ा। तो अपने सहेलियों से कहा कि कुछ करो। फिर वहाँ पर सहेलियों ने जो है कनात लगा दिया चारों ओर से। कनात जानते हैं, टेंट वाले लगाता नहीं है वो एक कपड़ा जैसा, ऐसा हम लोग भोजन करते समय लगाते नहीं है चारों, वो कनात लगा दिया। फिर थोड़ा थोड़ा पीड़ा होने लग पड़ा। तो महारानी जो माया देवी जी ने अपने दाया हाथ को ऊपर शाल वृक्ष में पकड़ा, पकड़ते वहां भगवान जी का जन्म हुआ। कोई कहते हैं उनका योनि से जन्म हुआ, और कई स्टोरी कहते हैं योनि से नहीं हुआ, यहाँ से जन्म हुआ, कहते हैं जन्म हुआ। जन्म होते ही भगवान बुद्ध जो है सिद्धार्थ है ना, उसमें तुरंत चल रहे हैं, ऐसा चल रहे, 7 कदम चले, पृथ्वी से 7 कमल के फूल फूट कर निकला, फिर उस पर चले। उसने कहते हैं कि इसका देखिए, मैं दूसरा व्याख्या कर रहा हूँ, कैसे चले। कम से कम तो छेतम छे सचिन देला बम्बा दुम्बर ने, मैं कम से कम नहीं जा रहा, फिर दूसरे तरफ जा रहा हूँ। कम से कम तो जब है भगवान बुद्ध आप सिद्धार्थ के रूप में लुम्बिनी में जन्म हुआ था। अब कंगी तो वो बोलते हैं 2 पैर वाले मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ आप बोलते हैं। मनुष्य का 2 ही पैर होता है ना, कंगी मतलब मनुष्य को कहते हैं। कंगी में जो प्रमुख जो है, कंपन नहीं होता है ना आदमी का, कंगी में सबसे अग्र, सबसे श्रेष्ठ, सबसे आगे जो है कंगी तो वो आप ही बोलते हैं। कंगी तो वो छेतम से जब आपका जन्म हुआ था, सचिन देना गुम्बा दुम्बरू ने बोलता है। जैसे जन्म हुआ था पृथ्वी से 7 कमल का फूल निकल आया, और 7 बुम्बा भी निकला नोरबू रिंचिन के साथ में। वो कमल के फूल के नीचे नोरबू रिंचिन से बड़ा हुआ 7 बुम्बा था, तरबुम। वो तरबुम के ऊपर कमल के फूल आए, उस पर भगवान बुद्ध 7 कदम चले। सचिन देला गुम्बा दुम्बरो ने ऐसा दाएं हाथ को उठा करके ऐसा उंगली करते हैं, नानी जिटेन देना छोचे सो, मैं लोक कल्याण करने के लिए आया हूँ। सिमचेन थमचे लफेन थे आगे छेद ना देवा चेवा ले हो गया, ऐसा 7 कदम चल के गए होते हैं। सचिन देला गुम्बा नानी जिटेन देना छोचे सो, मैं इस जम्बूद्वीप में, इस संसार में अग्र हूँ, छोचे सो देखे खेपा छोला। इस तरह से लीला करने वाले महाराज भगवान बुद्ध जो है आपका हम स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं। उनके आचार्य वीर लोपन पाओ जी ने ऐसा स्तुति किया हुआ है। देखो कम से कम ये तो वो चेतन से सचिन देला बम्बा दुम्बर ने नानी जितेन दे नाचोक जैसो जैसे खेपा खेला छक साल हो, मैं आपको प्रणाम करता है। अब मैं लायुल से आने वाला, देखो कम से कम तो पढ़ने आता है ना किसी को। तंगबरो गादेन लाई युल ने जन, कहाँ से आए थे? गादेन लायुल के ला से नीचे आया था, मैं बताया ना। तंगबरो गादेन लाई युल ने जन जलपे खप तो युंगी लुमसु जुक बोलते हैं। पहले देवलोक से अवतरित हुए थे, सफेद हाथी 6 दांत वाला, हाथ में कमल लिए हुए। तंगो गदेन लाई युल ने जन, वहां से आए बोलते हैं। जलपे खप तो युंगी लुमसु जी, ये जलपे खप जो है महाराज शुद्धोधन के राजमहल कपिलवस्तु में, वहां जब माया देवी सोई हुई थी तो सफेद रंग वाले 6 दांत वाले सूंड में कमल के फूल लेने वाले हाथी के रूप में कोप में प्रवेश किए। उसको रिपीट कर रहा हूँ, ये दूसरा स्तुति था ना, ये थपके तुझे कम से करनी जो जलपे कर दो युंगी लुमसु लुम्बिनी सल्तु थुपातम। मैंने बताया कि लुम्बिनी में उनका नाम लुम्बिनी सल्तु थुपातम, मतलब लुम्बिनी नामक जो बगीचा में उनका जन्म हुआ था। चुमदेन लाला छालो, अब चुमदेन है बोलता है, देवताओं की भी देवता बोलते हैं, अब महान है बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, हो गया ना जी। चुमदेन लाई लाला छालो तो शिलुम्बे सल्तु तम्बे से संधा जाएंगे। अब जैसे जन्म हुआ 7 कदम चले तो आकाश में इंद्रधनुष का जैसा जाल बिछ गया बोलता है। इंद्रधनुष का जाल बिछे
देवताओं ने देवलोक से फूल का वर्षा किया, देवताओं ने देवलोक से फूल का वर्षा किया, और आकाशवाणी हुआ कि जम्बूद्वीप में बुद्ध का जन्म हुआ है, लोक कल्याण है उनके, इस तरह से आकाशवाणी हुआ। लागी ठाटाने नांगबाला जाग जा शक ना लागी ठाटा, और आसपास के चिड़िया जो भी है सब जो है इतना सुंदर सुंदर चहक रही है, कोयल तोता मोर जो भी हो ना, सब खुशी से झूम रहे हैं। और लुम्बिनी जो वहन संगेस का जन्म हुआ था ना, वो एकदम संजय होपा में या संगेस के जिंगम की तरह ऐसा हो गया बोलता, पूरा शांत, इतना आनंद में, इतना सेहत में, इतना सुखदायक वाला क्षेत्र के रूप में बदल गया बोलता है। ये लुम्बिनी में, लुम्बिनी के बारे में बोलता है ना। तो ऐसी लुम्बिनी संतंग जजिंगी संतंग जजिंगी तो छिंचोगी, वहां बोलते हैं ब्रह्मा जी आए बोलते हैं, विष्णु जी आए, उन्होंने भी भगवान का पूजा किया बोलते हैं। देखिए यहाँ संभा मतलब ब्रह्मा, जजिन मतलब विष्णु, आदि देवताओं ने बुद्ध का जम्बूद्वीप में जन्म होने पर उन्होंने भी पूजा पाठ किया, पूजा अर्चना किया, स्तुति किया। समझ गया ना, संग से ना संभार हुआ, ज्ञाजिन से ना विष्णु है, संग ज्ञाजिन की, तो उन्होंने प्रशंसा किया, बुद्ध का जम्बूद्वीप में अवतरण हुआ, लोक कल्याण होगा, धर्म का प्रचार होगा, सद्धर्म की दीप जलेगा, इस तरह से ना चांचू रिसुंगे से संचलो। और ये जो पुत्र जो जन्म हो गया ना, ये जो है निश्चित रूप से झांगछुक रिक्सुंग निश्चित रूप से जो है ये बोधि को प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से ये संन्यास हो जाएंगे, ये निश्चित है। जान करके सभी को ऐसा आभास हुआ, ऐसा लोगों ने समझा, ऐसे लोगों में अनुभव हुआ, इसलिए ये कहते हैं झांगछुक रिक्सुंग से छालो। अब यहाँ देखिए एक दूसरा बात बताऊं, जिस दिन भगवान जी का जन्म हुआ, आषाढ़ के महीने में उन्होंने कोक में चले गए ना, सोचोंग के दिन, कोई छपा के कहते हैं, कोई छपा चौंगा कहते हैं, जो भी हो, लेकिन वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। एक घटना मैं आपको यहाँ बोल देता हूँ, साका दावा बोल के आता है ना, साका दावा को जिल्लत इतना है। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? साका दावे छे चौंगा। भगवान बुद्ध कब संन्यास हो गए? साका दावा छे चौंगा। भगवान बुद्ध ने शरीर कब छोड़ा? साका दावा छे चौंगा। ये तीन घटना है, भगवान बुद्ध का जन्म और भगवान बुद्ध ने जब बुद्धता प्राप्त किया वो, और जब उन्होंने कुशीनगर में शरीर छोड़ा, ये तीन घटनाएं साका दावा छे चौंगा वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा संन्यास का दुचे हो गया, संन्यास का वो पवित्र दिन हो गया, समझ गया ना। और वैशाख पूर्णिमा के दिन जब भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी में उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी, आकाश में चंद्रमा की छटा, इतना सुंदर वातावरण, वहां उनका जन्म हुआ। अब जन्म होते ही अब पुत्र को जन्म हो, बड़ा खुश हो गए, माया देवी खुश हो गई, पुत्र जन्म लिया ना। उसके बाद शुद्धोधन जी बहुत खुश हो गए, प्रजापति गौतमी जो माया देवी की छोटी बहन थी वो भी खुश हो गए। तो उस समय पुत्र के जन्म होने के बाद कपिलवस्तु के नजदीक ही हिमालय में, गुफाओं में, हिमालय है ना, वहां पर गुफाओं में एक ऋषि रहते थे। ऋषि का नाम था असित मुनि, उनको काल देवल भी कहते हैं। काल देवल ऋषि का निवास स्थान था। उनके अंदर ज्ञान था कुछ परखने का। उनको पता लग गया कि महाराज शुद्धोधन के घर में लुम्बिनी वन के पास भगवान का जन्म हुआ है। जान लिया अविज्ञा ज्ञान से, तुरंत इतना बूढ़ा हो चुका है, 90 साल की आयु है। अब बुद्ध को देखने के लिए ललायत वो देखने आए। आकर के एक बूढ़ा अपने बांजा, नालक है उनका नाम, नालक है, नालक के साथ राजमहल के समीप आता है। लोगों ने छोड़ा नहीं, अंदर अभी पुत्र जन्म हुआ है, राजमहल में बड़ा व्यस्तता चल रहा है, आप कैसे जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर भी जाओ, महाराज से कहो कि काल देवल ऋषि असित जी आए हैं, नया जन्मे हुए पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं। फिर कोई सेवक गया अंदर, द्वारपाल या जो भी गया, राजा जी से कहा। फिर राजा जी ने कहा ऋषि हो तो अंदर ले आओ। फिर ऋषि जी को अंदर लेके आए, उसके साथ उनका भांजा नालक था। अंदर गए, अंदर जाके लड़के को देखा, बच्चे को देखा, गोद में लिया। गोद में लेकर के, छोटे बच्चे है ना, तो बुद्ध का पैर जो है वो बाबा के उसमें लग गया, ऋषि के है, बच्चे अटकेलियां करती है ना, तो सिद्धार्थ गौतम जी का यहाँ लग गया। तो बड़ा खुश हो गया, ज्यादा ऐसा कर रहा है, झुक रहा है। उसने देखा संगे चमनिंदे के शरीर में छेन संगो, सुमजू सनी और पेसी संगो जेचू का निशान है। 32 लक्षण होता है महापुरुषों का, नाखून का ढंग दूसरी तरह, और ये हथेलियों में पूरा चक्कर खुरलो जैसा होते हैं, कोई कई शुभ लक्षण वाले चिन्ह होते हैं। उसको विस्तृत जाने से आप लोग नहीं जानेंगे।
मतलब छेन सांगो सुनचु चानी बोल के 32 प्रकार का महापुरुषों का लक्षण होता है। और लो बिगड़े दोर्जे बिगड़े क्या क्या होता है नहीं, कमल की फूल की तरह शरीर में, उस लक्षण को देखा। उसके बाद 80 प्रकार के दूसरे अनुलक्षणों को देखा तो रोया। असित काल देवर जी रोए, आंखों से एक बार हंसे, फिर रो लिए, फिर रोया। फिर राजा को थोड़ा चिंता हो गया, ये पहले तो हंस रहे थे, क्या क्यों रो रहे हैं, कोई अनहोनी घटना तो नहीं है। राजा डर गया। फिर राजा पूछते हैं तो असित ढंगसों नपो बोलते हैं उसको, ढंगसों नपो। असित काल देवर को बोलते हैं, महाराज पहले तो आप हंस रहे थे, फिर तुरंत रो रहे हैं, क्या है, कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं है, वो तो पूछा। फिर असित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके घर में पुत्र रतन का जन्म हुआ है। ये ऐसे वैसे पुत्र नहीं है, ये या तो चक्रवर्ती राजा है, गल्पो है, या तो ये भगवान बुद्ध बन करके जो है लोगों को दुख से दूर होने का रास्ता दिखाएगा और ये पूरा जम्बू द्वीप में छा जाएगा, ऐसा बताया। मैं हंस इसलिए रहा था कि ये व्यक्ति जो है महापुरुष है, बने तो चक्रवर्ती राजा राजमहल में, अगर नहीं रहेंगे तो बुद्ध बन जाएंगे, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मैं बूढ़ा हूँ, आंखों का रोशनी नहीं है, सिर पक गया है, मैं तो कल परसों मर जाऊंगा, लेकिन यह बालक जब बुद्ध होगा मैं इसका दर्शन नहीं कर सकता, इसलिए मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है, ऐसा बताया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। फिर उन्होंने जो है असित ऋषि काल देवर ने अपने भांजे नालक से कहा, देखो तू जरूर इस जो व्यक्ति बुद्ध बनने जा रहा है, तो जब ये बुद्ध बन जाएंगे तो इनके पास जाके इनसे दीक्षा लेना और बुद्ध के रास्ते में जाना बोल के अपने भांजे को बता दिया। और खुद रोते रोते फिर हिमालय में चला गया, यहाँ भी लुमडेन कर दिया, समझ गया ना। तो इसलिए वो कालदेवल महर्षि जी रो रहे थे। चुनु तो ते मी संगे दे अंगा मंगा धरनी जुजलतेन वो डिपा चन सरचे में टेंदा में ब्राजेला छक्सालो होते। अब भगवान बुद्ध जी बचपन में थे तो इतना शालीन, राजा को बड़ा हैरानी हो गया, बड़ा चिंता भी होने लगा, खुशी भी होने लगा। खुशी इस बात का कि जब वो जन्मे थे ना, उनके चेहरे में आभा थी, है ना जी, दूसरे बच्चों से बिल्कुल भिन्न थे, विजित था वो, है ना जी, इतना सुंदर, और ऐसा बालक किसी के साथ वो नहीं कर सकते थे। वो कहा कि जिस दिन सिद्धार्थ जी का जन्म हुआ ना, 5 दिन बाद उनका नामकरण किया ना, नामकरण सिद्धार्थ रखा गया। आपने पढ़ा होगा किसी ने, सिद्धार्थ इसलिए था, धंडुप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, धंडुप, धंडुप सिद्धार्थ है ना। क्यों हुआ, जब सिद्धार्थ जी का जन्म हुआ, राजमहल में सुख समृद्धि आनंद, है ना, सब कुछ। दूध नहीं देने वाली गाय दूध दे रहा बोलता है, भटकने वाला घोड़ा शांत होकर बैठा बोलता है, हर कहीं फूल फसल, इतना सब कुछ ऐसा ही बिना परिश्रम किए सब वहाँ दिखाई दे रहा है, सब वो बरकत आ रहा है, बोलता है, सुख समृद्धि वैभव आनंद सहजता सब खुद स्थित हो रहा बोलता है। इसीलिए उनका नाम धनडुप बोल के, सिद्धार्थ बोल के नामकरण किया बोलता है। उस दिन बड़ा शांति का वातावरण आया, तो इसलिए उनका नाम क्या रखा, सिद्धार्थ रखा होता है। और बचपन से ही वो जो है बहुत शालीन और वो थे ना, तो कहते हैं कि उन दिनों में शाक्या के खानदान में खेती बाड़ी बहुत करना पड़ता है, राजा होगा भी कुछ खेती करना पड़ता था। और महाराज शुद्धोधन सबसे पहले जब फसल बोने का समझ आता है ना, राजा को हल चलाना पड़ता था, तो राजा खुद हल चलाते थे। उस समय सिद्धार्थ भी बचपन थे, जाते थे, लेकिन उनको कोई रुचि है ही नहीं। एक जामुन का पेड़ है, उसके नीचे जाकर के बैठ जाते, घूम नमन करके बैठते थे, क्योंकि ये जो सिद्धार्थ जन्म हुआ ना, वो है संन्यासी है, उसी समय से है संन्यासी है, क्योंकि वो लायु से समझन दोधन करने आए ना, लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरह से छस का नियमन करना चाहिए, समझ गए ना। संन्यास पहले से ही संन्यास बन चुके हैं, वो दब्बा दिखा रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं, ये समझना चाहिए हम लोग को, समझ गया ना। तो वो एकदम सुनसान शांत, इतना करुणा वाली मैत्री वाले भाव के साथ रहते थे। आपने ये कथा सुना होगा कि क्या कहते हैं, ये जो है ना शुद्धोधन, महाराज शुद्धोधन के 4 भाई थे, एक शुद्धोधन, एक अमितोधन, एक शुक्लोधन, एक द्योतोधन बोलते थे ऐसे। एक बहन थी, उनका नाम था अमिता, क्या अमिता नाम की बहन थी। उस बहन जो है सिद्धार्थ जी का संज्ञा चंदन देश की बुआ का एक पुत्र हुआ, वो देवदत्त है, समझ गया ना, जो देवदत्त के बारे में बताया ना, द्विलक्षण, वो देवदत्त जो है सिद्धार्थ जी की बुआ की पुत्र है।
तो देवता छोटे से बड़ा दुष्प्रवृत्ति वाला, हिंसक प्रवृत्ति वाला, कुटिलता वाला, कठोर बोलने वाला, उनका जो है चरित्र जो है ठीक नहीं रहता है देवदत्त का। तो एक बार कहते हैं कि सिद्धार्थ जो है बगीचा में आसन लगा के बैठे थे, बड़ा वो सोच रहे थे ये क्या है, संसार अनित्य है, ये पूरा उनको बोध था ना, नमलेन सब वो कर रहे थे। उस समय उन्होंने आंख खोला तो देखा कि आकाश से हंस उठ के जा रहे हैं। क्या? हंस उठ के जा रहे हैं, झुंड में, बड़ा आनंद के साथ उठ के जा रहे हैं। फिर उन्होंने आंख बंद करके वो भावना किया, नमलेन किया। उस दौरान क्या हुआ कि एक हंस जो है फड़फड़ाते हुए उनके पास गिर गया। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था, तीर लगा, देखो वो निंजे आ गया उनके अंदर, संगे छोटे थे ना सिद्धार्थ, निंजे आ गया, उस हंस को अपने गोद में लिया, बड़ा मुश्किल से तीर को बाहर निकाला, उन्होंने अपने छाती से लगाया गर्म सांस से, ताकि उसका माँ जो चोट जो है ना ठीक हो जाए। तो ऐसा करुणा उसका मरम पट्टी किया उसको। इतने में थोड़ी दूर से एक दौड़ते हुए एक आर्ट सुनाई दिया, तो देखा कि देवदत्त आ रहा है धनुष और बाण लेकर के, धनुष तीर लेकर के आ रहा है। तो सिद्धार्थ जी के पास आकर के झगड़ा करता है, ये हंस मेरा है, तू इसे संभाल, ये मेरा शिकार है, मुझे देख लेते हैं। भगवान नहीं दिया, भगवान ने कहा कि ये मेरे पास आया है, इसका मैंने जान बचाया है, जान बचाने वालों का हक जान मारने से ज्यादा उनके बिल्कुल दिया नहीं। खूब झगड़ा किया, तू मैं करके झगड़ा होता है, तो मानता ही नहीं। उसका अपने बुआ का भाई था देवदत्त, बचपन से ही ऐसा ही कुटिलता वाला, माना नहीं। बाद में राज दरबार में गया, बोलता है इसका जो शिकायत जो है ना, फिर वहां राजा ने फैसला किया कि बचाने वालों का हाथ जो है मारने वालों से ज्यादा होता बोल के राजा का जो अदालत जैसा था ना, उसने सिद्धार्थ के पक्ष में जो है निर्णय लिया, सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय लिया। फिर वहां दिया। फिर महाराज का एक मंत्री था उदाई नाम का, शुद्धोधन किया, उन्होंने राजा के कान के पास जाके कहा, अगर ऐसा आपने जो है हंस जो है सिद्धार्थ को दे दिया, ये तो पक्षपाती है, देवदत्त ये चीज नहीं समझेगा, फिर वो पक्षपाती ये समझेगा, ऐसा नहीं है। फिर दूसरा सिखा दिया। फिर क्या किया कि एक बड़े हॉल में हंस को बीच जगह में छोड़ दिया, चोट लगा हंस है ना, फिर वहां पर वो किया, एडवर्टाइजमेंट किया, वहां पर बताया कि एक तरफ सिद्धार्थ खड़े हो जाओ, दूसरी तरफ देवदत्त खड़े हो जाओ, जिस तरफ ये हंस जाएगा ये उसी का हो जाएगा, ऐसा फैसला किया। हंस को बीच में छोड़ा और सिद्धार्थ एक तरफ, देवदत्त एक तरफ बैठे थे। तो उस हंस ने देवदत्त की ओर देखा, इतना डर गया, पसीना निकल गया उसको, कहीं जान से ना मार दे। पशु में भी ये एहसास होता है, पशु में भी ये भावना होती है, डर गया, इतना काम रहा है। फिर थोड़ा धीरे धीरे जो है चक्कर काटते उसने सिद्धार्थ की ओर देखा, फिर वो प्रसन्न हो गया, खुल गया, धीरे 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 सिद्धार्थ की ओर गया, हंस सिद्धार्थ का हो गया। समझ गया ना? पशु पक्षी भी जानते हैं किस में दया है, किस में वो है। मतलब कहने का मतलब बचपन से ही संजय चुमनिंदे जो है महाकारुणिक और वो थे, क्या कहते हैं, दयावान थे, कुशलवान थे। पर इसके बाद फिर राजा को बड़ा डर लगा, क्योंकि राजा शुद्धोधन जी संगे सोना देखना नहीं चाहते थे अपने पुत्र को, राजा होना देखना चाहते थे। वो सोचेगा हमारा तो वंश बिगड़ जाएगा, वंश का दीप बुझ जाएगा, ये है वो है, बड़ा चिंता में पड़ गया महाराजा जी। ये घर जो के भिखारी बन के जाएगा, फिर कहीं तप करेगा, ये करेगा, फिर राजघराने का क्या हो गया, वो हमेशा चिंता में रहते थे महाराज शुद्धोधन, चिंता में रहते। उदाई नाम का उनका एक मंत्री है, उस मंत्री को समझाया ऐसा प्रपंच बिछाओ कि ये सिद्धार्थ जो है रात महल में ही बंदा रह जाए, कहीं बाहर ना भाग जाए, बोल के ऐसा व्यवस्था करो बोल के अपने मंत्री उदाई को कहा। फिर उदाई ने षोडशी बोल के 16 कन्याओं को बुला करके लाया, सबसे सुंदर उन दिनों में, देव कन्याओं की तरह देवियों को है ना, छोटे छोटे 16 साल की लड़कियों को बुला कर उनको आभूषण लगाया, सोना चांदी हीरा मोती, इतना मेकअप करा के वो सिद्धार्थ के इर्द गिर्द रख दिया था कि वहां भटक जाएंगे। भगवान कहाँ भटकने वाले थे जी, भगवान को कुछ असर ही नहीं पड़ता, फेल हो गया प्रोग्राम। उन्होंने कई कुछ दिखाना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा नाचना शुरू करके, ये टसना मस ध्यान में लीन, बिल्कुल उनको फर्क नहीं पड़ा। Genji metu duji punjamba serji lumbo देवा चार साल राय जी, Genji metu duji punjamba पहले से दुचम से किया है, बचपन से, समझ गया? वो षोडशी जो 16 मतलब 16 साल की लड़कियां सुंदर आभूषित करके मेकअप करके उनके चारों ओर रख दिया, उनको कहा टस ना मस, फेल हो गया, कुछ नहीं कर सका। फिर उसके बाद उदाई के द्वारा 3 महल बना दिया, 3 महल, गर्मियों के लिए एक महल, जब बरसात होता है उस समय एक महल, और पतझड़ के लिए एक महल। उस महल के अंदर इतना सुंदर
इतना सुंदर वातावरण में, उससे भी उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उससे ज्यादा अधिक तो संगेश जब बाहर जाते थे, सिद्धार्थ जी बाहर बैठते थे जामुन के पेड़ के नीचे, वहाँ वो बड़ा आनंदित होकर के बड़ा आराम से बैठते थे। महल में जब बैठे थे उनको कभी खुशी भी नहीं होता था, ऐसा करके बैठ जाते थे। उनको जितना भी ये जो माया है ना, माया प्रपंच जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, है ना जी, होता नहीं हो 5-6 लाख रुपया होता तो बहुत बड़ा अमीर बन के समझते हैं ना हम लोग। बहुत गलत फहमी है जी। भगवान जी जब बचपन में थे सिद्धार्थ के रूप में, 16 कन्याओं के बीच में, सोने के महल में, चांदी के चपाई पर, सोने की कुर्सी पर, सोने चांदी के थालियों में भोजन करने वाला व्यक्ति का मन बिल्कुल उसकी ओर लगा ही नहीं। उनको पता है कि ये सब दुख का कारण है। राजा ने जितना ये सब व्यवस्था किया है, यहाँ वहाँ पब्लिकों से लोट खसोट करके बना के तो रखा हुआ है। जब सभी दुनिया के लोग दुखी हैं, सभी कोई सुख चैन से नहीं सो रहा है, तो मैं सुखी होकर के क्या करना है, ये भावना सिद्धार्थ को बचपन से ही था, है ना जी। ऐसा कई 3-4 महल बनाया, उन महलों से कुछ असर पड़ा ही नहीं। तो बाद में एक दिन तो वो दम घुट गए, वो बैठ करके महल में दम घुट जाते हैं, भगवान का दम घुट जाते हैं। तो कहते हैं कि पिताश्री, मैं अपने प्रजा को देखना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कपिलवस्तु नगर को देखना चाहता हूँ, आप मुझे जेल में डाल के रखे हुए। फिर वो पुत्र, ये जेल थोड़ी है, यहाँ ऐश और आराम सब कुछ है, ऐश और आराम सब कुछ है, ये है वो है, बोल के उन्होंने बहुत ही वो किया। अब थोड़ा बता करके आज रखना पड़ेगा, आज शुरुआत है ना, कल से और जो है हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि इतना ऐश और आराम तुमको कहाँ से मिलेगा, ऐसे राजघराने के पुत्र हो, शाक्य वंश के पुत्र हो, तुम यहाँ बैठे हो, ऐसा काम मिलेगा बोल के बड़ा उन्होंने बताया। फिर उदाही को फिर पठाया उन्होंने। उदाही जो अमात्य था ना, उदाही जो है उनको फिर बोला कि ये मेरा लड़का जो है, ये इसको और भी कुछ करके ऐसा एक उपदेश दो कि जैसा कि ये महामाया में झटक जाए, राजघराने का शान रह जाए, इज्जत रह जाए बोल के उदाही से कहा। फिर उदाही जो है मंत्री है ना, फिर वो कहता है कि मैं मंत्री के भावना से कहता हूँ कि तुम जो है ऐसे वैसे पुत्र नहीं हो, राजघराने के पुत्र हो, वे भी शाक्य वंश के महाराज शुद्धोधन के पुत्र हो। ये बड़े भाग्य से मिलता है, राजकुमार हो, कि क्षत्रियों से प्रेम जताना ही जो है, ये जो है उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम आनंद का वो कर रहे हो, आनंद रूपी जीवन का तुम बहिष्कार कर रहे हो। जो क्षत्रियों को दिल को आपको जीतना चाहिए, भोग विलास में लगना चाहिए। हर एक मनुष्य का संसार में रहने का नाते जो है स्त्रियों से समागम करना ही सबसे प्रमुख लक्ष्य है, बोलते हैं। स्त्रियों से समागम करके संसारिक रूप को लेना ही सबसे प्रमुख लक्ष्य है बोल दिया, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने फिर बताया कि सिद्धार्थ बोल रहे, समझा करो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इंद्र देवता, चंद्र देवता, अगस्त ऋषि, महर्षि पराशर, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि गौतम इत्यादि सभी लोगों ने क्षत्रियों के साथ भोग किया है, आनंद किया है, श्रेष्ठता में किया है। जब ऋषि मुनि करते, आप तो राजकुमार हो, आपको तो ये सारी चीजें करना चाहिए, आनंद। फिर बुद्ध जी कहते हैं, जिन ऋषियों ने, महर्षि पराशर, महर्षि गौतम, महर्षि क्या कहते हैं चंद्र, इंद्र देवता, अगस्त्य ऋषि, बृहस्पति, पराशर, वशिष्ठ जो भी है, ठीक है, उन्होंने स्त्रियों के साथ समागम किया और क्या कहते हैं संसार के प्रबंध। लेकिन उन ऋषियों का बाद में क्या हाल हुआ मैं जानता हूँ, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। वो सभी ऋषि जो है पथ भ्रष्ट हो गए, वो सब जो है अप्रशंसनीय हो गए, और क्या कहते हैं समाज में सब बेनामी हो गए, बदनामी हो गए। मुझे बदनामी नहीं बनना है, मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ज्ञानी हूँ, मैं खुद समझता हूँ, ऐसा बता दिया बुद्ध ने। समझ गए ना, संगेश ने ऐसा बता दिया। तो उन्होंने बताया कि सभी पदार्थ जो दुनिया में दिखाई देता है सब बदलने वाला है। एक सुंदर क्षत्रिय आयु ढलते 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 सिर पक जाता है, आंख से दिखाई नहीं जाता है ना जी, फिर चलने की क्षमता नहीं है। सुंदर क्षत्रिय यदि पूरा जीवन भर सुंदर बैठता है तो मैं मान लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 30 साल के बाद ही ढलना शुरू हो जाता है। मैं भी ढलूंगा, मैं भी बूढ़ा हूँ, फिर मुझ में क्या फर्क है दूसरों के साथ। मैं लोक कल्याण करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, मुझे लोगों को सत्य का मार्ग दिखा कर ही रहना है। कृपा करके महामंत्री जी आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे कुछ भी मत बताइए, क्योंकि संसार में कोई ऐसा चीज नहीं है जो क्या कहते हैं बदलने वाला नहीं है। राजा होगा भी गरीब बन सकता है,
गरीब होगा भी अमीर बन सकता है। सब इस दुनिया में उथल पुथल है, सब दुख से ग्रसित है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसमें दुख ना हो। देवलोक तक के लोगों को, लोग जो है देवलोक के जो देवता लोग भी दुख से ग्रसित हो, तो इंसान को तो कहना ही है। कृपा करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, वहां फेल हो गया जी, फेल हो गया। समझ के ये जो उदाई है ना जी, एक बात बोलना मैं छोड़ दिया, वो बोलता हूँ। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था ना, उसी दिन 8 चीजों का जन्म हुआ था जी। यहाँ ये बोल करके मैं छोड़ देता हूँ। लुम्बिनी में जब बुद्ध जी का जन्म हुआ ना, वैशाख पूर्णिमा में, इसको ध्यान से देना, उस दिन 8 चीज भी साथ में जन्म लिए थे। क्या लिया था बताते हैं? जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ने संगस का गोफंग प्राप्त किया, दुर्जे देन जंगचुक शिव। जब लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ, जंगचुक शिव का अंकुर भी वहां से निकला, दुर्जे देन से। जिस पेड़ के नीचे संगस का गोफंग मिला ना, जंगचुक शिव, दुर्जे देन, संगस का जन्म लुम्बिनी में होता है। उसी दिन दुर्जे देन जंगचुक सिंह का भी पौधा उग गया जी वहां, उस पेड़ के नीचे जाके। बाद में संगस एक जो ये उदाई जो अभी उनका अमात्य है ना, उसका जन्म भी उस दिन हुआ था। समझ गए ना? ये उदाई जो उनका जन्म भी उस दिन हुआ था। एक उनका एक घोड़ा था कंथक नाम का, उस घोड़े का जन्म भी उस दिन हुआ था। उनका एक सारथी था छंदक नाम के, उनका जन्म भी उस दिन हुआ था। और उनका एक भाई अनुरुद्ध की आनंद कुंगाओ का जन्म भी उसी दिन हुआ था। ऐसा बोलते हैं 8 चीजों का जन्म। ये देखो कितना हुआ है, देखिए। इसलिए दुर्जे देन जंगचुक सिंह जो है ना जी, बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि कल से डिटेल जाना है ना, अब हम लोग कहाँ पहुंचे? दावा चुचो शचे से बोधे तशी लुम्बे सौतो तंदे से संतान जिंगी तो छेंचो की जचू सुने छांसा लो, यहाँ पहुंचा। तो दूसरा तरफ जाए तो लुम्बिनी सल्तु थुपा तम चंदे लाई लाला छक्सा लो, यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है जी, अब यहीं रखते हैं। आप लोग जो है कल से बुद्ध लीला को जो है तत्पा और धमसी के साथ श्रवण कीजिए। कम से कम आपको ये एहसास हो जाएगा कि संगेश चुम्बन देश क्या थे और क्या है, और संगेश में क्या खासियत है आप पता। क्योंकि हम लोग नंगा संगेश पर बोलते हैं ना, उसका जड़ क्या है? संगेश है ना यार। पहले बुद्ध को समझो, फिर तब जाके धर्म समझ में आ जाएगा। समझ गए ना जी? ये संगेश का तत्पा चुनी, बुद्ध लीला, बुद्ध जीवनी, बुद्ध चरित्र का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, धर्म को श्रवण करने का मौका मिल रहा है। पूर्व जन्म से हम लोग कई बार मिले जैसा मुझे एहसास हो रहा है। अभी भी मैं आप लोग को जागृत कर रहा हूँ। ये हम्बा हो सकता है, मुझे ऐसा फीलिंग होता है कभी। तो ये संगेश चंदन देकर नमथर को अच्छी तरह से, जैसा कि अमृत का पान कर रहे हो, उसी उद्देश्य से पान करना और अपने चित्त को सुधारो, फिर कल्याण हो जाएगा। फिर करो जो बेचक छो में मर में कोरा। फिर संगेश आपके साथ है ना, आपने संगेश के बारे में सुना है ना, कभी भी भूलोगे नहीं। देखिए, मनुष्य का जीवन मिलना बड़ा कठिन है। पूर्व जन्म में हम लोग ने अच्छा कर्म किया है। क्या ममाला 6 सात डिजा चिन्ह तो न मिलो रिम्बोचे था। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। वही नहीं, हम लोग संगेश के तनबा रिम्बोचे में जन्मे हैं, है ना जी। वही नहीं, किसी गुरु का दर्शन हो रहा है, और वही नहीं, और हम लोग छक छो में मरमे करते हैं। ये सब बहुत अच्छी है, हर कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता। लेकिन छक छो में मरमे जो भी करे, उस समय मन पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। समझ गया ना जी? सेम रहता, सेम दुलवानी लगवाते, सेम दुलवीनी थोड़ी थोप बोलते ना, सेम दुलवानी मनसा धमनम साधु बोलते हैं ना, सेम दुलवानी लगवाते बोलते हैं। सेम जो है साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। सेम संभा जो ना, फिर सब कुछ ठीक है, फिर धर्म हो जाता है। ये हमेशा याद रखना। कल मिलते हैं। अब अभी तक जो हम लोग ने जो सुनम का थोप जो भी हो, अच्छे मन से हम जो धर्म का श्रवण किया है, उस श्रवण को जो है श्रवण मात्र ही नहीं, अपने सेंस के अंदर थोड़ा संभाल के रखिए। बुद्ध के बारे में थोड़ा आपको संदेश मिले तो आपका चित्त सुधारने में सहयोग देगा। तो जितना भी हम लोग ने आज के इस 1.25 घंटे में जो हम लोग ने सुनम का साक्षी किया है, पुण्य कमाया है, उस पुण्य से जगत के सभी प्राणियों का कल्याण हो, सभी सुखी हो, कोई दुखी ना हो। इस मनोकामना के साथ चलिए वहाँ मलम लगाते हैं। मैं बता रहा हूँ, वहाँ का मतलब जो हमने छक साक्षी किया है, छक का नमलन किया है, उसको सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचना है, सबको बांटना है, सब प्राणियों का कल्याण हो। ये मोआ है, मोआ माने बांटना।
जो हम लोग ने गेवा साक्षी किया है ना, उस गेवा से सबका कल्याण हो, मेरा ही कल्याण ना हो, सबका कल्याण हो, उसको मोवा कहते हैं। और मोलम का मतलब भविष्य में मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, अच्छे विचार से देवाचन के चिंगम में पहुंच जाऊं, अच्छे मनुष्य के रूप में जन्म लूं, लोगों का कल्याण करूं, किसी के प्रति गुस्सा न हो, इस तरह से मोलम बन जाता है। मोलम जो है एक इच्छाएं को प्रकट करना, ऐसा हो वैसा हो बोले, अच्छा इच्छा, अच्छा मोहा मतलब जो पुण्य किया उसको बांटना, उसको मोहा कहते हैं। चलिए मोहा मुल्लन करते हैं। मंत्र संजय नवाताएगा ये सोचवा तुझे चंबदा ये सोचवा तुझे तो नाला संजय जासे पाने को देगा तेरे मजा बातों में पाई देवा चंजे जागे शिंगांगे काजे दिले जंबे जरमाता चवा संजय बरमा चाबारो देरो केने नांदे जातोशो ये दागे मोलांता बागे छोटे संगे जानसे तंजकी ये मेरो राजिगे आतोसा तायाता बंसागिया ओलामुदानाए स्वागसुम शेबे जवा समझते मोवादना चोदमा वादे ताजे गेवे तावादे कोंचा संगोचा जेरादो मावारजे जंबा बावाजी गाजे कुंदो संबोधे आंगे जिंदे तेरा कुंजे जैसो गालोचे देवादेगा थमसे प्राप्तों तेजे शेपाची को चिंताता खोर्दों को जैसे जिंदाता 체제 전자 삼보지라와 된다 거나 답소 저와르쇼 발데라메 남바라 타르바라 게제사야 로다메 제제 제레바라 통웨 모게지 लामे जिला सेमला जो बारजो केवा कुंदो यंगा लामादा धर्मे चजे बाला पंजोजे सारा नमजे योंगे राजोने तुरजे चंगे गोपा युरथोचो सोनम दे tamje zirban tamne nimbe janam banjene kegana je bala chobai sebe tsole dowa dolwar sho jangjo semjo rimbo je maje pan jejor je jewa nyamba ne ban Komne kondo telvarisho Nendrani modele Sendele Yeme goyadele Shi Nimsentado delebo Chabne konjo sumji 다시쇼
Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. माननीय आचार्य जी को हम सभी श्रद्धालुओं की तरफ से नमस्कार। आज थोड़ा मैं जल्दी आ गया, 10-15 मिनट पहले कुछ बात कहना चाहता था ना पहले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जो हम लोग ये जो प्रवचन शुरू कर रहे हैं ना, ये मैंने एक पहले मौलम लगाया था कि भविष्य में जो पढ़ाई किया हूँ, 18 साल तक मैंने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया, यहाँ वहाँ घिसते फिरते, टशीजोंग में 7 साल, बनारस में 14 साल, और अनेकों गुरुओं से लूंग ठित सब लिया, थोड़ा थोड़ा सम बैठने का भी मौका मिला। फिर गवर्नमेंट का नौकरी करने का एक इनविटेशन भी आया, लेकिन मैंने नौकरी नहीं किया। मैंने सोचा कि हमारे मित्रगण बहुत हैं, लामा जी लोग हैं, मेरे से सीनियर लोग थे, मैं जंगी गाँव का हूँ, मैं आचार्य रमेश चंद्र नेगी, शरब निंगपो के ऊपर मुझे पीएचडी करने का मौका मिला। शरब निंगपो हम लोग पढ़ते हैं, टिकेदा की थोड़ा दी जिन्होंने उस पर पीएचडी किया हूँ संस्कृत में। और मैं परम पावन पूज्य गुरुजी खमठुरु मुझे गुंगमा जी का मैं शिष्य हूँ। टशीजोंग में मंदिर है और जंगी गांव का हूँ। मेरे नाम राशि वाले 2 हैं, मैं जूनियर हूँ, मेरे से सीनियर बनारस में बैठते हैं और बहुत ज़्यादा किताब लिखते हैं, जंगी के हैं, मेरे रिश्ते भी लगते हैं, भाई भी हैं। तो मैं जंगी गांव का, किन्नौर का जंगी का हूँ, और अपने मौलम के अनुसार जो है काफ़ी अध्ययन करने का मौका मिला। सौभाग्य से मैं तिब्बती भाषा में मैं बिल्कुल प्रवचन कर सकता हूँ, अंग्रेज़ी भाषा में बहुत अच्छा कर सकता हूँ मैं भाषण, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वैसे ही मैं अंग्रेज़ी में भी भाषण कर सकता हूँ। और एक यूरोप में एक देश है बुल्गारिया, उसकी भाषा में भी मैं भाषण कर सकता हूँ। और हिंदी तो हमारा मातृभाषा है, ये सब है, ये मैं परिचय देना चाहता। एक दूसरी बात, मैंने कहा था कि
2 साल पहले गुरुजी आरसी मेहता जी स्पीलो गांव से, इनसे मुलाकात हुआ। ये यहाँ अपने पोते को पढ़ाते थे ना, तो मेरे पास आए, फिर मिले जुले। ऐसा करते करते इन्होंने बताया कि आप इतना पढ़े लिखे हैं, इतना बड़े खेम्बो हैं, तो यहाँ पर प्रोग्राम चलाना चाहिए, हम लोग को भी कुछ सिखाइए बोल के इन्होंने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया। कल मैंने बताया था ना आपको। फिर मैं सोचा ठीक है 2-4 आदमी आएंगे। वो लोग
Varanasi Lato Nemchodo Chuje Korlo Korme Tuzan Teba Sumlo Konte Chamsalo Shenje Korlo Kombra Sajan Bude Tomba Jodan Letinso Kormo Jige Yodo Duna Tuba Lile Jala Samsalo Siba Sumna Beme Yamben Yando Yabra Chandra Chemba De Lame Jowa Kunje Rabja Temba Jebra Zela Chansal Helo Jena Chela Kunje Sancho Jongye Saje Tsama Chime Doje Tabu Kushin Nyangen Dabra Zela Sansalo Yanga Neba Zeba Mesene Ma Dine Dune Ringsel Mangchulne Kodon Chaje Jela Chamsalo Tatyata Mune Mune Mahamuno Eso Tatyata Mune Mune Mahamuna 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 Eso Gangje Gangye Zowo Chetamje Sachen Dena Gomba Dumbrane Ngani Jikden Dena Chache Teze Keba Chola Chansalo Gamba Gaden Laye Khapdo Yungye Lumso Jo Lumbe Ni Saldo Tuba Chumden Laye Lala Chansalo Shaye Kando Mama Sheje Shaje Jondo Shono Rose Serje Nizu Samsung Kando Je Sizun Tsume Kula Chansan Dongcher Goji Jowe Sulten Choten Namda Jondo Uta Sil Neren Zani Jamdo Katu Timne Jondo Dala Chansan Gyalbe Kapdu Langchen Yongba Tol Yangba Chelo Jeo Dansen Manga Daro Toba Mansanje Chembe Ishe Parla Chansar Varanasi Chuske Korlogo Dede Sandu Chancho Chembo Samcho Dundu Gongba Nyangen Tumne Nanka Dala Chansar Dedra Tembe Dako Chumdenji Zibe Sola Gozanduba Yewo Dowa Kunje Jaba Deshin Ge Zandan Zumba Risho Deshin Sheba Chego Jinda Kordan Kuze Zendan Shinkandan Cheje Chenza Zambo Jinda Ozo Jirwarajo Chela Choto Sulwe Tabete Tasa Kando Nebe Sajo Toywaraje Kuzo Menji Jivenji Kodondo Duzum Sanje Kunji Molone Asin Shibu Zonjo Sawe Lome Jala Bijanza Yonte Sanje Kunda Namnaya Katin Sanje Kunle Lobije Sawe Lome Jala Sowande Nelo Jula Sobra Jinje Lo Sanje Kundo Sawe Lamala Kusungo Vachinde Sowande Tome Nelo Rama Shabana Sedan Duba Namra Jinje Lo Hona Namkadan Nebe Sanje Kunje Kamsun Kurva Dungo Jijam Sole Dalde Namba Tam Jishimba Sobe Sanje Jigo Von Lago Braja Dei Chidu Tambe Chi Tesong Kusumje Tome Tenla Bebraja O Nyambagi Kumon Chanchu Chidu Sanje Ba Hondo Jine Tambe Chi Sambara Shu
대라양 강원선배 시내 다자기 동반 메시지 절보 디니지 제바 주니지 남터 디니시 베까 임벨로 마치 남지 셈세직도 되데 셈버러슈 कल हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे रिंगना जिग्ने लामो जनरल जी लुमसो जुब्रा जेला चांसालो दावा चुजो शाजे सरको तशिलु में सल्दो तंबे से संदान जेजिंग ये तुम सजोगी संजो रिंसोगे से चांसालो के यहाँ जब भगवान बुद्ध का देवलोक से धम्बातो करको श्वेत केतु लाइबू देवपुत्र के रूप में जब वहाँ थे तो जब उन्होंने जिस जम्बू द्वीप पर नजर मारा तो देखा कि मेरा समय आ चुका है। जो संगेस मरमेद जी ने मेरे लिए लुंगदेन किया था, आप जानते हो ना लुंगदेन क्या किया था, दोरजे चौपा के अंदर देजिन शिपा था जुम्बा यांद ब्रोजोबे संगे मरमेद जी नाला धमजे छेव क्यों मांग भी दुना जम्बो दिनो यांद ब्रोजोबे संगे चुमदेन दे शाक्या थुपरा जुरो के दोरजे चौपा में आता है ना, दोरजे चौपा में भी लुंगदेन किया होता है संगे शिका थुपा को। दोरजे चौपा पढ़ने वाला तो ये अच्छी पता होगा आपको। मांग भी दुना धमजे बु क्यों जम्बो लिंगदो तुम्बा यांद ब्रोजोबे संगे शाक्या थुपरा जुरो के किया ना। उसके अनुसार जब लास्ट जन्म में जब देवपुत्र के रूप में लायुल में थे तो वहां से उन्होंने देखा कि कहाँ जन्म लूं, तो देखा कि कपिलवस्तु के महाराजा शुद्धोधन की महारानी माया देवी के साथ मेरा जो जन्म जन्मांतरों से मेरा रिश्ता है, उन्हीं के कोख में जाना बोल के भगवान ने वहां नजर माला। और सफेद हाथी 6 दांत वाले जिसके सूंड में कमल का फूल था, उस तरह के जो है सपन में आया माया देवी जी के। तो झुंझुल लमजे संजी चुमदिन की मायूम वहां से आए तो दाएं तरफ के से शरीर के वहां से जाकर के उन्होंने गर्भ धारण किया था। ये कल मैंने बताया था ना, तो ये बताया था टशी लुमी संतो तंबेन से। फिर उसके बाद गर्भ धारण होने के बाद फिर जब माया देवी गर्भित हो गए तो उन्होंने अपने पतिदेव शुद्धोधन जी से प्रार्थना किया कि मुझे बच्चे के जन्म के लिए अपने पीहर में जाना है, पिता के घर में जाना है। पिता का घर लुम्बिनी से 17-18 किलोमीटर दूर देवदा नाम का जगह है। आजकल भी मैं तो गया दर्शन करने, कई लोग लुम्बिनी तक जाते हैं, देवदा नहीं पहुंच जाते हैं। संगी चंदन दे के मायके का वहाँ एक गाँव अभी भी है, बुद्ध का मूर्ति वगैरह। फिर वहाँ जाने के लिए प्रार्थना किया तो महाराज जी ने बड़ा व्यवस्था किया, रथ सजाया, उनके साथ जाने के लिए कई दासियाँ सहेलियाँ और पूरा जो भी सुविधा हो सबका बंदोबस्त किया गया। फिर वो चले गए थे। चलने के बाद लुम्बिनी वन जब पहुंचे तो बगीचा एकदम जो है स्वच्छ सुंदर रमणीय फूलों से भरा हुआ, तालाबों के साथ चिड़ियों का चहक और वहाँ का एक वातावरण शांति में देख करके माया देवी ने अपनी सहेलियों से कहा कि मुझे यहाँ कुछ क्षण के रुकना है। तो वहाँ वो रुके थे। रुकने के बाद उनको प्रसव पीड़ा होने लग पड़ा। पेड़ में भगवान पल रहे थे ना, 10 महीने के बाद 300 दिन के बाद फिर उन्होंने जैसे शाल वृक्ष के ऊपर उन्होंने अपना दायां बाह को ऊपर किया, वैसा ही दाएं तरफ से जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ। जैसे जन्म हुए थे, मैंने कहा था जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था उस दिन एक ऐसी शुभ घटना घटी दुर्जे दिन में, जहाँ जंगचुक सिंह है, पीपल का पेड़ कल बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। जो जिस पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध ने बुद्धता प्राप्त किया था, उस पीपल का पेड़ भी, वो पीपल का पेड़ जिसके नीचे बुद्ध ने जंगचुक सिंह जो है, उस पेड़ का भी उसी दिन जन्म हुआ, उससे अंकुर फुटा एक। वो उसी दिन क्या कहते हैं, संगे चुमदेंदे का जक्षी अपना भाई भी है, छोटे चाचा का लड़का है आनंद कुंगाओ का भी जन्म हुआ। फिर उसके बाद उदाई जो महामंत्री थे महाराज शुद्धोधन के, उनका भी उसी दिन जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन। उसके बाद भगवान बुद्ध के खंडोमा यशोधरा का भी उसी दिन जन्म हुआ, समझ गए ना, उसी दिन जन्म हुआ। उसके बाद भगवान बुद्ध के साथ जो घोड़े के साथ हमेशा जाते थे, उनका जक्षी सार्थक जो थे, वो छंदक बोलते हैं, उनका भी उसी दिन जन्म हुआ। और भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय घोड़े, देखने में जानवर है लेकिन इंसान से भी इतना सुंदर चित्त वाला घोड़ा, उसका नाम कंथक, उसका भी उसी दिन जन्म हुआ। यह चमत्कार उस दिन हुआ। यही नहीं, जैसे ही बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, उसी समय खड़े खड़े जन्म हो गया उनका,
खड़े खड़े जन्म हुआ। खड़े खड़े जन्म होते ही 7 कदम तक रत्नों से भरा हुआ कलश के ऊपर 7 कमल के फूल आते हैं, उस पर 7 कदम चलते हैं और कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ, लोक कल्याण के लिए इस दुनिया में आया हूँ। डुम्बे नहीं सल्दो तुपा तुम चुंदे लाई लाला तमसे कमी तो छे तमसे सचेन देला गोम्बा दुम्बर ने नानी जिगदेन देना छोकचे सुम। मैं इस दुनिया में सबसे आगे हूँ। जैसे खेपा चूला चमचालो तंबो गदेन लाई युलने जन चलबे खब्दो युंगी लुमसुजु लुम्बी नी सल्दो तुपा तम चुंदेन लाई लाला छालो। ये बताया था ना। अब यहाँ तक मैं बताया था। फिर वहाँ जन्म होते हैं। जन्म होने के बाद यहाँ एक घटना घट जाता है। भगवान बुद्ध जी का जब जन्म हुआ था, कल मैं ऋषियों का सब बताया, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। जन्म होने के बाद क्योंकि माया देवी 50 साल की उम्र में थे, उन दिनों में बुद्ध का जन्म हुआ सिद्धार्थ के रूप में, है ना जी। जन्म हुआ तो दुर्भाग्य से बुद्ध के जन्म के बाद 1 सप्ताह के बाद मायुम जी का देहांत हो गया, परिनिर्वाण हो गया। संजय चंदेन के मायुम जो माया देवी जी थे, मायुम मतलब उनकी माता जी, माता श्री लामा जुंटू लमजे जी का देहांत हो गया, परिनिर्वाण हो गया, स्वर्ग सिधार गए। फिर जब स्वर्ग सिधारने से पहले वो जब बीमार थे तो उस समय उन्होंने अपनी छोटी बहन, वो भी महाराज शुद्धोधन की पत्नी थी, केग्यू दंगो बोलते हैं, देवता के अंजन की पुत्री थी, तो उन्हें बताया कि देख बहन, मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, अब तेरे साथ है मेरे बच्चे का भरण पोषण करना। तो महागौतमी प्रजापति चेग्यू दंगो जी ने, ये केग्यू दंगो जो हुआ था ना, सबसे पहले गेलोंगमा ये हुआ था, बाद में संगे चुमदेन का मौसी ही सबसे पहले गेलोंगमा का दुम्बा वहां से आया था। तो फिर मौसी प्रजापति ने कहा कि बहन दीदी आप घबराओ मत, मेरे बच्चे से भी बढ़कर आपका बेटा सिद्धार्थ का मैं पालन पोषण करूंगा, अब बिल्कुल निश्चय होकर रही है। तो इसी में माया देवी का सांस चला जाता है, परिनिर्वाण हो जाती है, गुजर। तो इसके कुछ दिन बाद जो छोटी रानी थी, उनका भी बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम नंद था। नंद वाला पहले प्रवचन में मैं कथा किया था ना, तेरे लोग भी ले गए दिखाए, नरक भी ले गए डर गए, तो दवा बन गए थे ना, यही भगवान बुद्ध जी के भाई थे। तो हाँ, वो नंद का जन्म हुआ। नंद का जन्म 2 बच्चे को कैसे पाल सकती थी प्रजापति ने, इसलिए क्या किया, उन्होंने अपने दीदी को दिया वाला वचन भगवान को उन्होंने अपने गोद में लिया और अपनी पुत्री को अपने दासी जो योंगो नहीं आता है जन्मो, उनको पालने के लिए दे दिया और सिद्धार्थ को अपने बच्चे जैसा पाला भगवान को, और अपने पुत्र नंद को दासी के हाथ में भरण पोषण के लिए रख दिया। यह चमत्कार हुआ था। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, फिर सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था, आपको मैंने बताया था कि उस दिन जो है सिद्धार्थ बोल के क्या है, इसको दंडुप बोलते हैं, दन थंजे डूपा। उस दिन महाराज के जो राजमहल था उसके अंदर इतना सुंदर वातावरण हो गया कि वहां पर जो वैभव धन संपत्ति जो खुद ही आ रहा है, खुद ही जो है बरकत जिसे कहते हैं ना, भाग्य और भगवान के साथ इतना बरकत आ गया कि राजमहल में इतना शांति हो गया कि बिना ऋतु का ही फल आना शुरू किया बोल के ऐसा बताया गया है कंजूर रिम्बोचे में, जहाँ संजय चुमदेन का नमथर बताया है कंजूर के अंदर, बिना ऋतु का ही फल आना शुरू हो गया। राज्य में जितना भी अकाल पड़ा था, समय पर वर्षा हुआ, फूल पत्तियां उगा, फिर फसल जो भी है उसका भंडार से भर गया और चोरी डकैती खत्म हो गया, सब दयावान हो गया, धार्मिक हो गया और धर्म का दीपक जला और चारों ओर सिद्धार्थ के जन्म होते हुए ऐसा वातावरण हुआ कि उस वातावरण का जिक्र हम लोग नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसको स्वयं देखें और स्वयं अनुभव करें। इस तरह का हालत हुआ था क्योंकि भगवान का अवतरण हुआ ना। तो यह यहाँ तक मैंने कल बताया था, फिर मैंने आपको दोबारा बताया। माया देवी जी का परिनिर्वाण हो गया, ये मैंने आपको बताया, और नंद को दासी के हाथ में दिया प्रजापति जी ने, वो भी मैंने आपको बताया। और जब सिद्धार्थ जो बचपन से इतना शालीन था, सज्जन, इतना चंगचुक सिंबा थे ना, चंगचुक सिंबा उन्होंने सब छोसा डिग्जम सब कर दिया है, जितना छोक सक्से करना था, जितना दान शील जिम्बा सुजिम सुबा सुंदे समझे शरक, दान शील शांति वीर्य समाधि विपश्यना प्रज्ञा सबसे परिपक्व थे। उनका यह अंतिम जन्म के रूप में था ना, सब बचपन में, ये तो जितवा अपना लीला दिखा रहे थे, तो वहाँ उत्पन्न होकर के बचपन से बड़े शालीनता, सज्जन, बिल्कुल विचारों में पूरा करुणा भरा हुआ, मैत्री भरा हुआ, ज्ञान से भरपूर, ऐसे सुंदर पला। उनका चेहरा को देखते ही बन जाता था कि चेहरा को देखते ही लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे, इतना सुंदर बालक थे, है ना जी। उनको फिर बड़े बड़े हुए, महाराज जी बहुत चिंतित थे। महाराज जी चाहते थे कि मेरा बेटा जो है चक्रवर्ती राजा बने, बुद्ध ना बने, ऐसा विचार था
क्योंकि मेरे वंश का दीपक बुझ जाएगा। शाक्य वंश को आगे कौन चलाएगा? बुद्ध नहीं बनना है, राजा बनना है। उनका विचार गलत था। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध बनने के लिए आए थे देवलोक से नीचे ना, वो तो जत्पा दिखाने, लीला दिखाने के लिए आए थे। तो बिल्कुल जब 8 वर्ष का जब हो गए तो सिद्धार्थ जी, उस समय सिद्धार्थ था ना नाम, भगवान का नाम सिद्धार्थ था। तंडुप, जल से तंडुप बोलते हैं। 8 वर्ष के थे तो उस समय उनको उनका अध्ययन का जो व्यवस्था किया गया, पढ़ाई का व्यवस्था, जो 8 ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया था ना, कल बताया था ना मैंने,